Recording. Let me share the screen. Okay, so prima facie, what are the views? What did you think about this particular mock? बताइए, in general, any comments? कैसी performance रही है? How was it compared to others? What was easy? What was difficult? Overall. Sir, I chose 2 passages, those were easy, and the answers were correct, only one was wrong out of those. Okay. And mostly verbal में गड़बड़ हो गई है. Because उसमें ज़्यादा time लग गया, that's why I was able to choose only 2 RCs. Third वाला करते-करते time up हो गया था. Okay. So And 2 usually RCs in VA. And how many in VA you did? 1-2 ही छोड़े थे सर, बाकी सारे करे थे. All right. So 8 and 6, 7, maybe 15 questions attempted. Okay. Yes sir. And उसमें half portion गलत हो गया. Okay. So see, now again, number of ideal attempts in VA would be not less than 18 to 19. Ideally. Okay. That should be our endeavor. So how do you get there would be simple thing to do would be maybe 12 out of 3 RCs and 6 to 7 out of VAs. Okay. That could be the ideal number of attempts, and 80% accuracy if you get, okay. So 80% here would mean maybe 13, 14 correct. So that should see you through, okay, more or less. So that's the kind of a thumb rule that we should go by. And then we work backwards and see that how do we achieve that. Because 2 passages become a little dicey. Because then say, okay, maybe this time you got 8, 7 out of 8, but sometimes you may not. And VA again, so VA we can say 5. We need to get 5 correct, and RCs we need to get maybe 9 correct. Okay, that's the kind of rough thumb rule we should go by. Okay, all right. और बताइए बाकी के लोगों ने क्या किया? सर इस बार VA थोड़ा डिफिकल्ट लगा. VA थोड़ा डिफिकल्ट. ओके. यस सर. ओके. यस सर, इस बार थोड़ा लेटेंसी इशू आया. लाइक मैं जैसे इन रियल टाइम आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने देखा मेरे पास 20 सेकंड बचे हैं सेक्शन खत्म होने से पहले. आई लुक डाउन और मैंने ऊपर देखा मेरे DILR स्टार्ट हो गया. ओह, ओके. तो आई डोंट नो इफ इट इज फ्रॉम माय एंड या फिर सर्वर की साइड से इशू था, तो मैं एक ऑड वन आउट अटेम्प्ट नहीं कर पाया. ओके. ओके. कुड बी एनीथिंग, कुड बी फ्रॉम देयर साइड. सर वैसे लास्ट 3-4 मॉक्स में ऐसे अलग-अलग इश्यूज आ रहे थे मेरे को भी. ओके. कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी वो रिस्पॉन्ड करना. आई थिंक दे यू ऑल मस्ट बी डूइंग इट ऑन वेडनेसडे, राइट? नो सर, मैं तो मंडे को करता हूँ. अच्छा, मंडे को भी संडे को करता हूँ सर मैं तो. अच्छा, संडे को मंडे को भी ऐसा हो रहा है? सर वो मेरे को तो लग रहा था इनके सर्वर का ही इशू है, क्योंकि ये बहुत बार होता है. पीक लोड ये होगा. सब होता है कैसे, संडे सैटरडे को भी अटेम्प्ट करो तो भी सर्वर में होता है कि वो टाइम आउट करने लग जाता है, फिर हैंग ही हो जाता है थोड़ी देर के लिए. ओके. ओके. मे बी सर्वर इशू. मेरा भी LRDI बिगड़ा था इस वजह से इस बार का. ओके. Okay, all right. Chalo, so let's look at VA, okay, because VA, so people are saying that it was very challenging. So let's understand what was the challenge there. So, all right, the first question, this was, yes, it was difficult. It was a difficult question. So, now if you see Knights, Templars, and then Templars, and Templars, okay, and then their history. So Knights, Templars, shocking demise dominates our memory of an order that was. So this should at least tell us that one should not be the odd one out, doesn't it? Yes sir. यस क्योंकि यहाँ पे Knights, Templars बताया गया है और बाकी जगह पे आप देखिए Templars. So I mean more or less you can say that one will not be the odd one out. So it's shocking demise dominates our memory of an order better known by Ibn al-Athir's assessment, the fiercest fighters of all France. Okay. Now, there is a sentence that said the answer to why the Templars fell. So, the shocking demise. So, this is linked. It fell partly, it lies in the weakness of the last master and partly in cruel caprice of whatever. So, 1 and 3 are linked here. But then now he's trying to discount it by saying that, but what is seldom noted is that this
never established for themselves a geographical base. Therefore, what is saying that if the answer is this, then why are you discounting this? This also should be one of the factors. Had they established themselves as the rulers, their history might have been different. So this one then 2 is very well connected to 5. Okay, so 5 and 2. So this becomes the para here and 4 goes out. यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए ये फिलिप इन्होंने यहाँ पे डाल दिया फिलिप 4 attacked. The Templars were famed for their bravery and dedication and piety, but they were not enough to save them when Philip IV attacked. So में 135 का तो वो बन गया था मेरा प्रॉब्लम, बट hmm. फिर 2 और 4 में ही कंफ्यूज हो गया था मैं, तो 4 Oh. मैंने रूल आउट, वो मतलब Okay. बेटर Yes. लगा मेरे को, If क्योंकि see, ये when you फिलिप go to 5, then you say they never established for themselves a base. So this is linked to this. Had they established themselves? यस See, सर वो मिस never- हो गया मेरा वो. हाँ वो miss हो गया. Okay, ठीक है. All right. So 4 was the odd one out here. Okay, let's. So this was difficult, of course. Let's look at this one. This I would say was easy, wasn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. They exquisitely design every subsystem of landing. So they is basically these armies of engineers and all of these. And in the quickening race to put men and machines, tremendous resources are devoted. Okay, the armies of engineers. The resources are these. They work, concentrate years of work. So 2 and 4 are basically linked, and then 1 is linked to 4. And then why does all this happen? They exquisitely design every subsystem so as to withstand the shock of arrival. Otherwise, what will happen? The failure of any subsystem to function after touchdown could destroy human lives and billions of dollars of equipment. Okay, so 2413 becomes the order. So I think you should have got this. This cannot be called difficult by any stretch of imagination, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I Yes. hope most of you got it correct. सर सो अपेरेंटली इस बार मेरे सारे इजी मीडियम गलत हुए एंड सारे डिफिकल्ट ही ये हुए क्यों हैं. गलत हो गया आपका? Why did you get this wrong? सर मैंने 2 वाला लास्ट में लगा दिया था, सो आई रोट 4132. Oh, okay. तो आई डोंट नो मेरे इस बार इजी मीडियम रॉन्ग हुए और सारे डिफिकल्ट ही हुए हैं. तो चलो आपको कोई बात नहीं. That's also not a bad problem because then you can easily work on easy and medium. राइट सर. ये वाला जो देखें इसमें C और D के अंदर यस सर, डाउन. मैंने डिमार्क किया. Yes, sir. Yes, Demark sir. here. तो दोनों में कंफ्यूजन हो रही थी, Sir. एक जैसे ही दिख रहे थे. अच्छा, अब इसमें देखो, let me give you my perspective here. So fascism in Italy undermined Italian linguistically to the extent of enforcing a pure Italian free from foreign words and expressions. Okay, under fascism, a croissant became a cornetto and blah blah blah. Invented by this. Even the pronoun was this. So all these examples of how the influence of foreign languages affected it. The regime sought to standardize and flatten to weed out dialect, and it was the very moment that Italy's writers turned defiantly outward. The entire 20th century can be read as battle of wills between the walls and this. ठीक है. तो अब इसमें देखो, it's easy to root out A and B, isn't it? Yes, sir. Yes, So sir. impurities Yes, sir. वो सबसे पहले बोल रहा है ये, और ये एग्जांपल दे रहा है croissant, football and bar. So these two can be ruled out. Now when we come to see 20th century writers of Italy clashed against its fascist regime's iron-fisted endeavor to rid Italian of its anomalies and foreign imports. Now this looks okay. Let's look at this one. Many Italian writers rebelled against Italy's fascist regime, which single-mindedly sought to eliminate the influences of other languages in Italian. Now, what is the difference between these two? One is he's saying that it was an endeavor to get rid of it, anomalies and foreign imports. And here is saying the influences of other languages on Italian. Are these two very different things? सर मेरे को तो ये लगा था कि जो ये लास्ट लाइन में बोला है ना, इटालियन कल्चर एंड दोस माइंड, ये इस वाले पार्ट से मेरे को लगा था कि सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, तो इसलिए फॉरेन इंपोर्ट्स एक जनरल वो डाल रहा है. सर सी में सिर्फ फॉरेन इंपोर्ट्स गलत लग रहा था. नहीं, फॉरेन इंपोर्ट्स तो चलो ठीक है, ये जैसे फॉरेन इंपोर्ट्स है ना, croissant became a cornetto, ये फॉरेन इंपोर्ट्स तो ठीक है. अरे भाई किसी का ये somebody is mic is on, please switch it off ना, जब अगर नहीं बोल रहे हो तो. हाँ
सर इसमें बाकी आप देखो तो ये भी लिखा फर्स्ट सेंटेंस में कि टू द एक्सटेंट ऑफ एनफोर्सिंग अ प्योर इटालियन फ्री फ्रॉम फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। तो मतलब सर यहाँ से तो हमें ये सेंस मिलती है ना कि वो मतलब जो भी मतलब ये इम्प्योरिटीज कंसिडर करते थे, लाइक दे जस्ट वांटेड प्योर इटालियन एंड नथिंग एल्स। तो सर ये इसलिए मैंने सोच के डी मार्क किया कि जो भी इन्फ्लुएंसेस है, लाइक इन्फ्लुएंसेस भी जो है नहीं, मतलब वी वांट प्योर इटालियन, नथिंग एल्स। देखो मैंने एक्चुअली नाउ आई टेल यू आई हैड आल्सो वेरी केयरफुली इवैल्यूएटेड नाउ 20th century writers. What does this mean? This means all the 20th century writers. यस सर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? It was in that very moment that Italy's writers, at least a considerable number of them. यस सर। So Yes. can we say that this 20th century writers means all 20th century writers? सर इसीलिए एलिमिनेट किया था। हाँ सर, ये भी एक रीजन था मैनी चूज करने का। हाँ, इसलिए अगर आपने एलिमिनेट किया था तो आपने सही किया था, ठीक है। नाउ इसने आंसर सी बता रखा है, करेक्ट? हाँ सर, Yes, सी sir. बता रखा है। मेरे हिसाब से डी भी अगर आपने किया तो गलत नहीं किया। आई वुड गिव यू मार्क्स ऑन डी आल्सो। ओके, फॉर मी, एज फॉर मी डी इज अ लिटिल बेटर देन सी। ठीक है, इसको मैंने भी डी ही मार्क किया है। ओके, आई आल्सो मार्क डी ओनली बिकॉज one is I was not agreeing with this. This means each and every writer. Okay, whereas here he says that considerable number of them. So that's the distortion as per me. सर सी में बहुत ज्यादा मतलब मेरे को ऐसा लगा क्लैश्ड, आयरन फिस्टेड, मतलब कितना ज्यादा वो एक्सट्रीम जा रहा है। मतलब वो Extreme. मतलब वो सिंपल डी में लिखा है रिबेल्ड, तो सर Correct. रिबेल्ड जो है थोड़ा सा मॉडरेट है कि हाँ, Correct. है ना। Correct. क्लैश मतलब हो गया कि वो Correct. मतलब आपस में फिजिकल हो गए। करेक्ट। देखो और फिर दूसरा ये है कि जैसे अब ये कह रहा है कि इसमें एनामलीज और फॉरेन इंपोर्ट्स, सी इन्फ्लुएंस इज आल्सो दैट ओनली ना। यस सर, और एनोमलीज मतलब मेरे को भी समझ नहीं आया कि इतना मतलब एनोमली क्या, मतलब वो तो इन्फ्लुएंस ही है कि वो ऐसे इसमें एनामली तो बल्कि है नहीं ना ये। अगर आपने फॉरेन वर्ड्स क्रॉसा को क्रोनेटो बना दिया तो वाज इट एन एनोमली और वाज इट एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड? तो इसलिए मतलब मेरे हिसाब से भी डी ज्यादा बेटर था। अब उसने अपने आप को सी मार्क करके जस्टिफाई कर रहा है तो करने दो, बट वी शुड नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम ourselves if we mark D. Okay? So sir, यहाँ पे anomalies in foreign imports are this across वाली line, right? हाँ, यही बताने की कोशिश कर रहा है वो। Right. Okay sir. ठीक है। सर और सर सी में एनॉमलीज एंड फॉरेन इंपोर्ट्स लिखा है, बट सर पैसेज का जो मेन सेंस आ रहा है वो लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा है। तो नहीं, वो लैंग्वेज की ही बात कर रहा है, इटालियन ऑफ इट्स, वो बात तो लैंग्वेज की कर रहा है, वो तो ठीक है। सी वो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि ये जो मुझे एक तो ये सपोर्ट नहीं हो रहा कि सारे के सारे 20th century राइटर्स मींस एवरीबॉडी, ओके, ऑल, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, कंसिडरेबल नंबर ऑफ देम, फाइन, देयर मे बी ए मेजॉरिटी, देयर मे बी मोस्टली, मोस्ट ऑफ दोज लिखता तो ठीक है, इसको कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो इस तरह के देखो, मैं इसीलिए आप लोगों को जो पीपल की काइंड ऑफ बीइंग वेरी डिप्रेस्ड और डिस्पॉन्डेंट आफ्टर गिविंग मार्क, तो वो ये सब चीजें, ठीक है, ये इसका जब मन आता है तो इसको मार्क कर देगा। अभी देखना कभी किसी बाद में कभी करेगा इसको डी को मार्क करके उसको जस्टिफाई कर देगा, तो जो इसका मन होगा वो करेगा ये। तो इसलिए ठीक है, डी इज एज गुड एज दिस, इन फैक्ट इवन बेटर। तो हाँ बोलो। सर इसमें डी वैसे हटाने का रीजन क्या था मॉक में? मतलब नहीं, उसका कहने का मतलब है कि हमने उसको इन्फ्लुएंस से बजाय बेटर ये है कि वी शुड बी स्पेसिफिक कि एनोमलीज और फॉरेन इंपोर्ट ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। तो he has a funny reason, obviously he will have his own reason for justifying, but which is not palatable to me. हाँ ये तो बिल्कुल ही कन्विंसिंग। सर बट ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब 20th century वर्ड मतलब थोड़ा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली 20th century की ही बात की जा रही है, तो मे बी इस वजह से मतलब सी, मैंने भी डी मार्क किया था, बट अब मुझे लग रहा है कि सी में भी बेटर हो सकता है। नहीं तो अच्छा 20th century है तो फिर यहाँ तो इसका क्या मतलब होता है, ऑल कि स्टूडेंट्स, सपोज करो वहां लिखा होता स्टूडेंट्स हैव प्रोटेस्टेड, व्हाट डज दिस मीन? ऑल स्टूडेंट्स हैव प्रोटेस्टेड। और अगर मुझे लिखना था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रोटेस्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ देम। डज दिस गिव यू अ सेंस दैट ऑल द राइटर्स रिबेल्ड? नो। ठीक है, तो ये हाँ सर थोड़ा सा मतलब एक्सटर्नल नॉलेज भी है सर, वहाँ पे फैशिज्म का जो राइज था वो सर 20th सेंचुरी में ही था, तो ये चीज वहीं पे भी कवर हो जाती है 20th सेंचुरी राइटर्स। करेक्ट सर मैं एक चीज ये कह रहा था कि इसके अंदर पर देखा जाए तो एक सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज की बात ही हुई है ना। नहीं इटालियन की बात है। अदर लैंग्वेजेस बोलना सीधा डायरेक्टली थोड़ा ज्यादा जनरलाइजेशन हो जाएगा ना। क्या चीज?
मतलब इसमें जब इसने बात करी है पैरा में अपने, सिर्फ हाँ। स्पेनिश इसने एक लैंग्वेज का नाम लिया है। क्यों इंग्लिश का नाम नहीं लिया इसने? ये क्या लिया हुआ है? इंग्लिश, स्पेनिश, खाली सर इंग्लिश ये इंग्लिश स्पेलिंग थोड़ी क्वेश्चन लिया ये एक्चुअली फ्रेंच टर्म भी तो है है। फ्रेंच का भी लिया हुआ है, ये फ्रेंच भी है। और क्वेश्चन। सर एक चीज मुझे ये भी लग रही थी कि मतलब मैंने वैसे डीमार्क किया था, बट मुझे एक चीज ये भी लग रही थी कि इसके अंदर मतलब इन्होंने तो ये रीजन नहीं दिया, पर यहाँ पे जैसे पढ़े तो लिखा हुआ है डिस्पाइट रनिंग ग्रेव रिस्क्स टू ब्रेक इट डाउन। तो यहाँ पे एक्सट्रीम तो एक थोड़ा टोन मिल ही रही है उसको, एक जनरल ठीक है, रिबेलियन तो नहीं दिख देखो रहा। देखो क्या है कि ये मैं इस पे तो बाद में मैं बैक इस पे जा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, इस पे ठीक है, सौरभ हैज व्यू एंड दैट आल्सो आई एग्री इन अ वे, बट आई हैवंट इवन गॉन देयर, आई हैव ओनली लुक्ड एट दिस। मुझे तो इसमें सबसे बड़ी इनकंसिस्टेंसी ये दिख रही है। यार आप बताओ, हजारों आपको मैं ऐसे ही दिखा दूं सिचुएशन जहाँ पे वो ये दिख के और ऐसा लिखेगा और बोलेगा कि इसमें मैंने ये थोड़ी लिखा है कि सारे, तो आपने एक मैंने एक्चुअली देते देखो, हुए यहाँ सर पे एलिमिनेट इसी एक बेसिस तो पे किया देखो था। इन लोगों को भगवान समझना बंद कर दो। ठीक है, ये बहुत ही मतलब अगर मैं इफ आई स्टार्ट यूजिंग सम वर्ड्स फॉर देम, तो उनका जो मनाता है वो करते हैं। तो लेट्स नॉट थिंक दैट व्हाटएवर दे आर सेइंग इज द गॉड्स डिक्री और एनीथिंग। Okay, कैट के लिए हम फिर भी ऐसे मान सकते हैं have ये बात को। that kind of advanced now level of understanding of the language that we can also assess independently which is a better one and which is not, right? तो उनको वो जो भी बोल रहा है उसको बोलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, he will say whatever he wants to say. He has marked C, so he will put all his force to justify C. ठीक है ना? But we also have to use our rational whatever faculties we have to understand. ठीक है, तो चलो इसको I think we have discussed enough on this. My point was this that D also is correct, equally correct, if not better, at least it is equally correct. Okay, so all right, let's go to the 20th question. This was also tough. Okay, odd one out, इस बार उसने दोनों tough किए। इसमें 1 मार्क कर दिया था। और सर 3 मार्क्स सर इसी में टाइम आउट हो गया था। तो मैंने तो पता नहीं सर क्या सोच के ऑन आउट किए थे, दोनों सही हो गए, लेकिन चलो बढ़िया हुआ है। लेकिन देखो इसमें क्या है कि सी beginning in the 60s, Andy Warhol and his pop art colleagues rejected abstract expressionism in the favor of art that portrayed the experience of consumerism. Using the photomechanical techniques of mass media, he depicted commercial products and all of this. Okay, and then even as he depicted Coca-Cola and this as well as race riots churning out this, and then he goes to in this way he became a foremost chronicler of a revolution. अगर आप ये वाला sentence देखोगे, one of the quirks of Warhol's career is that artist who invented the concept of 15-minute fame has had a staying power few of his peers can match. That means he's trying to tell you a paradox, that this is a guy who invented the concept of 15 minutes of fame. That means everybody under the sun enjoys 15 minutes of fame. After that, he is forgotten, he or she. So he's saying that this guy invented that concept, but still has lasted long enough. So he's trying to show a paradox in this third sentence, and that is of course not really necessary for this. That doesn't belong here. यहाँ पे उसने किस तरीके से ये चेंज किया और पोर्ट्रे कर रहा है कंज्यूमरिज्म को आर्ट में, वो बताने की कोशिश की गई। ओके, सो दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट हिज स्टेइंग पावर, ओके, और हिज लास्टिंग लेगेसी। तो दिस इज नॉट। सर मैंने इसको फेम की वजह से रिजेक्ट किया था। ठीक है, अच्छा किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, चलो, तो इसलिए 3 हो गया इसमें। इट वाज लिटिल नॉट इजी, क्योंकि देखो इस तरह के लंबे लंबे जब सेंटेंसेस होते हैं ना, तो ये ऑड वन आउट कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो अगर एक बार पढ़ने के बाद हमें समझ में आया तो ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए हमको। सर इसमें एक बात ये भी है ना कि 2 के बाद तो 5 ही बैठ रहा है, और उसके बाद फिर वो खुद सारा कुछ बैठता जा रहा है। करेक्ट, नहीं तो 2 में इतनी करियर की बात ही नहीं हो रही। हाँ, तो अगर आप सही तरीके से चल रहे हो तो आप पहुंच जाओगे आंसर पे, नो डाउट। लेकिन कई बार जब हम टाइम प्रेशर में होते हैं और लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, तो देन एवरीथिंग लुक्स लाइक द सेम, सभी कुछ एक जैसा लगने लगता है। ठीक है, चलो। सर ऐसे में फिर कौन सा ऑप्शन, मतलब कैसे ऑप्शन चूज करें? किसमें? ऐसे में जब हमें मतलब जैसे लॉन्ग सेंटेंसेस हम आंसर पे नहीं जा पा रहे तो। राइट, हाँ, सो ऐसे में आपको चूज करने के लिए 2 टेक्निक है। या तो एक उसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो, और या फिर उसको लेबल करने की कोशिश करो। ओके, वी ट्राई टू फाइंड लेबल्स फॉर ईच सेंटेंस। सम ऑफ द पैरा ऑड वन आउट्स आर good enough to give us opportunity to label each sentence, what is the role the sentence is playing in the paragraph, and then we find that 4 of them can be labeled in the same category and 1 is the odd one out. So अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें सीक्वेंस से ज्यादा ठीक तरीके से चल रहा है, क्योंकि आपको एक ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गया। जब एक ओपनिंग स्टेटमेंट मिल जाए तो then we should try to formulate a sequence. जैसे beginning in the early 60s, Andy Warhol. Now if you look at it, Andy Warhol पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे he दिया हुआ है, यहाँ Warhol दिया हुआ है,
ओके एंड यहाँ पे भी वॉरहॉल दिया हुआ है, तो और सर यहाँ पे ही दिया हुआ है, तो ही तो सब में ही दिया हुआ है। हाँ ही नहीं, तो व्हाट द पॉइंट इज कि एंडी वॉरहॉल अगर दिया हुआ है और बाद में वॉरहॉल वगैरह दिया तो एंडी वाला सेंटेंस तो आएगा ही आएगा पैराग्राफ में। जैसे हमने अभी पिछले बार नाइट्स टेम्पलर वाला देखा कि नाइट्स टेम्पलर वाला तो आएगा ही आएगा, बाकी क्या है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम, ओके एंड देन वी आर देन वील सी ये मिल रहा है हमको कि कैसे उसने किया, एंड देन इवन एज इट डिपिक्टेड एंड इन दिस वे, तो ये लिंक बन गई, ठीक है। एंड दिस सेंटेंस इज द ऑल ऑलराइट। लियोन कैश बताइए इसमें क्या आंसर है? सर सी क्या? यस सर सी। यस सर सी है। ठीक है, तो इसमें क्या इशू है? देखो, he has further expanded the puppet critique of human cloning which assumes that genes strongly determine development of particular behavioral trait and modified person will be unable to avoid expressing that trait. That means कि जो हमारे traits होते हैं they are determined by genes. Okay, so that means if we inherit certain kind of genes or if we are cloned with certain kind of gene, then we'll exhibit that trait only. Okay, not from the environment but from gene. The child is given a genotype that has already lived with full expectation that his blueprint of past life will control the life to come. Okay, so child has inherited the genes. तो यही उसकी blueprint है जो past life का, जो आगे की life को control करेगा. Cloning is inherently despotic. Despot means tyrant, autocrat. So अगर आप clone कर रहे हो, तो आप क्यों क्या करने की कोशिश कर रहे हो? You are trying to make one's children after one's own image and future according to one's will. तो आप ये कह रहे हो कि उसका जो बिहेवियर है वो आप कंट्रोल करोगे क्योंकि जीन आप दे रहे हो उसको, तो क्लोनिंग में, तो यू विल कंट्रोल द पर्सन ऑफ अ बिहेवियर, सो दैट्स लाइक अ डिस्पोटिक और tyrannical attitude. This type of argument, the cloner as a despotic puppet master is highly problematic because it relies on dubious biological and psychological assumptions. So now author is calling this particular argument as fallacious and problematic, okay, because he's saying that it depends upon wrong biological and psychological assumptions. Both environmental development factors must be considered. तो अब जो क्लासिक जो एक क्लैश है कि जो जीन से डिटरमिन्ड है उसका बिहेवियर की एनवायरनमेंट से डिटरमिन्ड, ओके, मतलब चोर का बेटा चोर ही होगा या चोर का बेटा अगर पुलिस वाले के घर में पल रहा है तो पुलिस वाला बन जाएगा। इसके ऊपर 50 पिक्चर आ चुकी है हिंदी में, ओके, एक भाई चोर बन जाता है फिर हाथ पे लिख देगा मेरा बाप चोर है। तो इस तरह से ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि क्या एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट फैक्टर्स भी कंसिडर होंगे उसमें, टू सीक द सॉर्ट ऑफ despotism that caste has in mind to make one's own children after one's own image will require more than just a reproductive decision. It will require a lifelong commitment. That means आपको ना कि सिर्फ उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना बल्कि उसका बिहेवियर पूरे उसके साथ में खड़े रह के लाइफ लॉन्ग यू हैव टू सी दैट ही बिहेव्स इन द वे यू वांट हिम टू बी। अदरवाइज इफ यू लीव हिम to the mercy of the environment, then he will not exhibit the kind of behavior that you want him or that you want him to exhibit. Okay, so basically इसमें इसके ऊपर इसने जो कास्ट की थ्योरी है पपेट क्रिटिक, उसके ऊपर डाउट रेस किया इसने। ओके, मैंने डी मार्क कर दिया था। क्या मार्क कर दिया आपने? चलो let us understand the options. Genetic modification is despotic because it prevents the person who is modified from making well-being free choices. देखो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये तो कास्ट की थ्योरी है। ओके, नहीं, हियर लियोन कैश हैज फर्दर एक्सपैंडेड, सॉरी ये जो थ्योरी है पपेट क्रिटिक वाली थ्योरी है। ओके, तो इसमें बाद में ऑथर ने फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए उसके ऊपर, राइट, तो इसलिए तो गलत है। द पपेट क्रिटिक एज आइडिएटेड बाय लियोन कैश क्लेम्स दैट क्लोनिंग इज टायरेनिकल, बट क्लोनिंग इज नॉट दैट डिस्पोटिक। क्लोनिंग डिस्पोटिक नहीं है, क्यों नहीं है ये नहीं बताया इसने। Why is it so? Okay, ये नहीं बताया इसने कि वो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है, ये नहीं बताया इसमें, इसलिए ये गलत है। राइट, contrary to Cass's implication, exerting control over child's genotype does not necessarily give one despotic control to shape its future according to one's will. तो ये कह रहा है कि ये भी आधी बात बता रहा है वैसे कि exerting control over child does not necessarily give one despotic control to shape its future. इसमें भी ये नहीं बताया ऐसा क्यों है, ठीक है, लेकिन ये बी से फिर भी बेटर है, राइट। और क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि claims that cloning is tyrannical but cloning is not that despotic, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? not that despotic नहीं, ये तो गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, इसलिए सी इज बेटर। ऑल्सो जो पपेट क्रिटिक है वो अपने आप को वो क्लोनिंग को टायरेनिकल थोड़ा बोल रहा है, वो तो मतलब उसके वो बोल रहे हैं ना, लियोन कैश बोल रहा है।
लियोन हाँ। कैश बोल रहा है। पपेट क्रिटिक तो सिर्फ ह्यूमन क्लोनिंग का है कि जो बिहेवियरल ट्रेट है, तो लियोन कैश बोल रहा है कि वो डिस्पोटिक हो जाएगा। Alright. Contrary to Cass's implication, puppet critic relies on misstatements of psychological reality. This is wrong. C is the right answer. मतलब whatever, इनमें सब में बेस्ट तो सी है। सी भी अधूरा है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी ठीक है, राइट? हाँ सर, कुछ अटपटा लग रहा डी था। कैसे गलत होगा? Puppet critic relies on misstatements of psychological reality. Misstatements कौन से हैं इसमें? यहाँ पे उसने कहा है कि इट रिलाइज ऑन रॉन्ग assumptions, ऐसा लिखा है ना कहीं पे। तो सर यही तो होगा dubious मिसस्टेटमेंट। biological and psychological assumptions. तो तो यही are वाली assumptions नहीं होंगी मिसस्टेटमेंट्स। नहीं, assumptions are statements. देखो assumptions, पहली बात तो biological and psychological assumptions बोल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है misstatements of psychological reality. तो ये दोनों चीजें क्या सेम है? देखो आप इसको पढ़ो ना, यहाँ क्या बोल रहा है, मिस स्टेटमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिटी, इज इट द सेम थिंग एज बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल assumptions? Absolutely not. Okay, playing on the public's worst fears. पब्लिक के फियर्स की भी बात हुई है क्या कहीं पे? यहाँ पे पब्लिक के फियर, ऐसे डर लग रहा है लोगों को, ऐसा कहीं है क्या? तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कर दिया इसने, और ज्यादा इधर थोड़ा सा ज्यादा आगे चला गया ये। ओके, तो इसलिए गलत है। ऑलराइट, I hope it is clear. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you sir please explain the meaning of cloning? Cloning is despotic. Sir, मुझे इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। क्लोनिंग डिस्पोटिक है, मतलब कि क्लोन करना। अब क्लोन क्या करते हैं, एक जैसा दूसरा बना देते हैं, तो वो एक तानाशाह है। डिस्पोट मतलब तानाशाह, कंट्रोल कर रहा है दूसरे को, वो है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है क्लोनिंग डिस्पोटिक है। ओके ओके, गॉट इट सर। ओके, ऑलराइट, गुड। चलो नेक्स्ट बताइए। ये भी इजी था। 4321 4321 सर इसमें 1432 कर दिया था मैंने। सर मैंने हाँ, सर। 4312 कर दिया था। देखो आपने अगर 1 से स्टार्ट कर दिया तो ये प्रिंटिंग द स्कैफोल्ड्स, ये कहाँ से आ गया सडनली? व्हाट इज द स्कैफोल्ड हियर? वी डोंट नो एनीथिंग कि ये स्कैफोल्ड्स क्या है। ओके, तो जब तक हम बताएंगे नहीं कि स्कैफोल्ड होता क्या है और क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, तो देन यू कैन नॉट स्टार्ट विद वन। Cultivating cells in a petri dish is a time-honored way of experimenting on biological tissues. But ये देखो, ये clearly link है. It is not particularly reliable. As cells often need specific structural support. To provide this, so to provide the structural support, tissue engineers are turning to 3D printers to make tiny bespoke scaffolds. Okay, तो tiny customized scaffolds बन रहे हैं जिनके ऊपर इनको सीड किया जाता है। तो scaffolds, देखो आपने घर में घर बनते हुए देखा होगा, बाहर मचान होती है, उसको scaffolding बोलते हैं, राइट? Yes, sir. स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे सपोर्ट लेके कुछ आगे बनाया जाता है। ओके, तो ये जो 3D प्रिंटर्स है, दे आर मेकिंग टाइनी bespoke scaffold, and as research into this advances, so do ways of printing the scaffolds. Okay, आपने यहाँ पे 3D प्रिंटर की बात की, और अब एडवांस हो रही है, तो एडवांस हो गए तरीके प्रिंट करने के भी, लीडिंग टू बेटर ड्रग ट्रीटमेंट। इस तरह के सेंटेंस तो एंड में आते हैं ना, लीडिंग टू बेटर ड्रग ट्रीटमेंट एंड कंप्लीट एंड ऑल दिस। ओके, सो 4321 becomes the order here. All right, let's look at the next one. 23. Yes. 2431. So anyone who has seen a piano player in action, piano in action, can attest to it uncanny nature. Once it's in motion, now this it's is related to player piano. One can almost imagine an invisible player. So invisible player, the piano keys seem to play themselves in cheerful ragtime. And then in the end, this sentence comes, now largely a relic of different time. It stirred many of the same questions that AI art does now. So he's relating it to AI art. So 2431. सर ये जो इट्स है, सर फोर्थ सेंटेंस में जो इट्स है, ये थर्ड को रेफर नहीं कर सकता है, पियानो कीज को? आप मुझे बताइए, पियानो की सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताइए, पियानो कीज आर सिंगुलर और प्लूरल?
प्लूरल। तो प्लूरल और इट्स क्या है? इट इज सिंगुलर। अगर वहां पे लिखा होता Yes, दे, sir. वहां पे लिखा होता वंस दे आर इन मोशन, राइट? तो मैं आपकी बात मान लेता बिल्कुल। Yes, sir. दे आर होता तो बिल्कुल पियानो कीज को रेफर कर सकता है, लेकिन इट्स लिखा हुआ है तो इट्स कैन नॉट रेफर टू पियानो कीज. ओके, दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर, so it has to refer to a singular only, and that singular is piano, player piano, Right, sir. right? So इसलिए आंसर 4 के बाद 3 कैसे आ रहा है? इनविजिबल प्लेयर एंड प्लेइंग देमसेल्व्स, ये दोनों आइडिया लिंक्ड है. आप कहाँ जाओगे 2-4 के बाद में? आप कहाँ जाओगे बताओ? 1 पे आओगे, चलो 1 पे आ जाओ. But does it make any sense to bring 3 after 1? Any sense at all? Now largely a relic of a different time, it stirred many of this. Piano kings seem to play themselves in cheerful that time. There is absolutely no linkage between 1 and 3. Okay, sir. Whereas if you look at 2, 4, 3, so seem to play themselves. And then 1 is winding it up, providing a conclusion. It stirred this thing as that AIR does now. सर इसमें जो 1 है हमने एंड में आएगा किसी तरह की, शुरुआत में मुझे इक्वली सेंसिबल लगा था. 1, 2, 4, 3 क्या था? Okay. Now largely a relic of different time, the piano player stirred many of the same kind of questions and debates that सर AIR 1 में जो है ना द पियानो प्लेयर है और 2 में ए पियानो प्लेयर है, तो 2 पहले आएगा ना. ठीक है, एक और ठीक है, वेरी गुड पॉइंट. वन मोर पॉइंट. ओके, वन मोर पॉइंट. देखो, जब आप एक सेंटेंस लिखते हो और उसके एंड में कुछ लिखते हो, तो अगला सेंटेंस उससे कनेक्टेड होना चाहिए. सपोज यहाँ पे ऐसा होता है कि नाउ लार्जली अ relic of different time, piano player has stirred many kinds of questions. Yeah, it is very uncanny, or it is a very strange thing, or something like that. And then you describe the player piano, that what happens. Okay, it plays on its own and blah blah blah. तो आप जब यहाँ पे लिख रहे हो कि debates that AI art does now, तो it's logical that your next sentence should talk something about AI art. ये जो चीजें ये मैंने भी सोची थी, लेकिन कुछ पैसेज की फॉर्मेशन ऐसे होते हैं कि आप शुरुआत में फर्स्ट सेंटेंस को कंपेयर कर देते हो, उसके बाद पहले चीज की बात करते हो, फिर कहते हो सिमिलरली एआई दिस. तो मतलब नहीं. अच्छा तो ठीक है, चलो. अच्छा, एक ये इसमें दूसरा ये भी है, द प्लेयर पियानो. ये दिस मेक्स ये तो ठीक, दोनों इशू. ऑलराइट, ये तो इजी था यार. Wasn't it? कि डिफिकल्ट था? इजी था सर, इजी था सर. एक ही देखो, क्या था सर, इजी था ये. हाँ, मार्क्सिज्म सॉ द प्रोलेटारिएट. प्रोलेटारिएट कौन होते हैं? वर्किंग क्लास. तो ये टर्म्स भी आपको पता होना चाहिए. दिस आल्सो इज यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली. वर्किंग क्लास एंड बूर्जुआसी. ओके, बूर्जुआसी, ये कैपिटलिस्ट क्लास, as occupying conflicting positions, since workers automatically wish their wages to be as high as possible, while owners and their proxies wish for the wages to be as low as possible. Okay, so ये मार्क्सिज्म है. अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रीडा कालो में पढ़ा था मार्क्सिज्म, राइट? सो मार्क्सिज्म का एक आइडियल है कि these two, proletariat and bourgeoisie, are having conflicting positions. Of all the classes that stand face to face with bourgeoisie today, the proletariat alone is really a revolutionary class. So bourgeoisie के सामने अगर 2-3 क्लास खड़ी कर दो, तो सिर्फ proletariat है जो कि revolutionary है. The other classes decay and finally disappear in the face of modern industry. The proletariat is its special and essential product. तो ये कह रहा है कि अगर आप एक bourgeoisie या capitalist क्लास के अगेंस्ट किसी को खड़ा कर सकते हो, तो वो revolutionary क्लास सिर्फ proletariat है, और दूसरी क्लास they don't stand, they decay and disappear. So that's the simple proposition of these 4 lines. इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा और कुछ. Unlike other classes that diminish when confronted with modern industry, the working class is a revolutionary class which challenges the capitalist class. तो ये कैप्चर कर रहा है उस चीज को कि नहीं कर रहा है? यस सर, यस सर. बाकी की क्लासेस जो है वो डीके हो जाती है, फाइनली डिसअपियर हो जाती है. वर्किंग क्लास इज द रेवोल्यूशनरी क्लास विच चैलेंजेस. ठीक है, अगले देखते हैं. प्रोलेटेरिएट और वर्कर क्लास इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी क्लास. यार ये तो उल्टा नहीं बोल रहा है. यस सर. फिर बिल्कुल गलत है. ये प्रोलेटेरिएट अलोन इज अ रियली रेवोल्यूशनरी क्लास. तो ये अगर आप किसी ने बी मार्क किया तो फिर बहुत गलत काम किया. प्रोलेटेरिएट इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी क्लास. अगेन देखो, 2 ऑप्शन तो इसने खुद ने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार के दोनों पैर काट दिए इसने.
दो ऑप्शन तो इतने इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने आपको निकालने के लिए दे दिए कि आप हटाओ मुझे बस। अनलाइक ऑल अदर क्लासेस दैट डिसअपीयर, प्रोलेटेरिएट और वर्किंग क्लास, रेवोल्यूशनरी क्लास ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है यहाँ तक। ये यहाँ तक देखो, ये इसने सेम ही चीज रखी है। एज इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय, ये देखो ये कितना बड़ा डिस्टॉर्शन दे दिया इसने। ये तो इसके खिलाफ खड़ी हुई है। प्रोलेटेरिएट इज फाइटिंग, इट चैलेंजेस, इट डजंट गेट एब्जॉर्ब्ड। दैट्स द डिफरेंस। और अब्सॉर्ब का मतलब एब्जॉर्ब मतलब उसमें जाके मिल गई, वो सब एक हो गए। केजरीवाल जैसे कहता है सब मिले जुले हैं जी, उस तरह से हो गए। ये कैपिटलिस्ट प्रोलेटेरिएट मिले जुले हैं, एक ही जैसे हो गए। सर मेरे को बुर्जुआ के लिए थोड़ा सा डाउट है सर। डोंट वी यूजुअली से बुर्जुआ पीपल एज मिडिल क्लास पीपल? हाँ, तो उसको कैपिटलिस्ट मान लिया इसने यहाँ पे। आपकी बात सही है, बुर्जुआसी आर बेसिकली मिडिल क्लास पीपल, बट यहाँ पे ये मार्क्सिज्म के उसके अंदर कैपिटलिस्ट क्लास मान रहे हैं उनको। मार्क्सिस्ट फिलोसफी में उसको दो ही क्लास मतलब एक प्रोलेटेरियन गरीब वर्कर हो गए और वो बुर्जुआसे हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग भी क्लासेस और जैसे होती हैं, तो यहाँ पे उसको कैपिटलिस्ट मान लिया गया। पर कई बार उसको जैसे मटीरियलिस्टिक और उस सेंस में कैपिटलिस्ट भी बोल देते हैं बुर्जुआसी। हाँ सर, राइट। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस वाज इजी। आई मीन आई थिंक दिस यू शुड हैव गॉट करेक्ट। देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, अब आप डिफिकल्ट बोल रहे थे, ये भी इजी था। ओके, दिस आई वुड नॉट कॉल इट डिफिकल्ट, मीडियम, चलो मीडियम मान लो इसको। ओके, दिस वाज मीडियम, दिस वाज इजी, दिस वाज इजी, आई मीन दिस वाज डैम इजी, सबसे इजी था ये। दिस वाज चलो थोड़ा सा टफ था ये, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था। दिस वाज आल्सो मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि ये समझ नहीं आती कई बार ये सारी चीजें हमको, तो बोल सकते हो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग था ये था। तो हाँ, ये इजी था, दिस वाज वेरी इजी। ओके, दिस यू शुड हैव गॉट। एंड 17th this was also difficult। तो ठीक है, तीन एक क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट, तीन चार और तीन चार डिफिकल्ट, तो ओवरऑल इट वाज डिफिकल्ट। आई एग्री। ठीक है सर, आई गॉट 6 out of 8। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 6 out of 8 इज एक्सीलेंट इन दिस। और उसमें भी एक वो वाला है सर, डी और सी, दिस में मेरा ओके, चलो 90। ठीक है, वेरी गुड, ऑलराइट। तो अब सर क्विज का आइडियल स्कोर वैसे कितना होगा इसमें? ओवरऑल आउट ऑफ 8? नहीं, ये अगर मैं अभी तो वीए की बात करूँ ना, आपको वीए में अगर आपके 4 भी इसमें ठीक है तो आप यू डन वेल। ओके सर। फिर इसको करने में कितना टाइम लगना चाहिए वीए को? क्या सर टाइमिंग्स? देखो टाइमिंग इसमें 12 मिनट में, जब व्हाट आई रिकमेंड इज यू शुड गिव 12 मिनट्स टू दिस। ओके, 12 से 13, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। जितने होए करो, नहीं तो भागो यहाँ से। और खास करके आपको पैरा जंपल के अंदर तो 1-1.25 मिनट से ज्यादा, डेढ़ मतलब मैक्स 1.5 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं। और सेम इज विद ऑड वन आउट आल्सो। समरी के अंदर ज्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा 2-2 मिनट लग सकते हैं। ओके, अदरवाइज यू नीड टू कीप स्पेंडिंग टाइम हियर। सर एक इनकार्ड में मैंने 20 मिनट लगा दिए थे सर। 20 मिनट लगा दिए तो आपने गलत कर दिया। देखो आपने वहीं पे आपकी गाड़ी डीरेल होगी। ठीक है, 20 मिनट इज फॉर 8 क्वेश्चंस इज नॉट करेक्ट। देखो आप उसको अगर वैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 18 अटेम्प्ट्स करने चाहिए आपको। ठीक है, 18 to 19 अटेम्प्ट। नाउ इफ यू आर हैविंग 40 मिनट्स टू डू दैट, देन यू कैन डिवाइड कि आपको कितना टाइम आ रहा है। तो आपको उस हिसाब से अपना टाइमिंग करना चाहिए ना। अगर आप 6 क्वेश्चन कर रहे हो तो उस हिसाब से वीए के उतना टाइम दो ना उसको। आपको वो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू कीप एन एवरेज एंड कीप। उसमें भी 4 गलत, उसमें भी फिर सर 4 गलत हो गए, और फिर सर आरसी के लिए 10 मिनट बचे लास्ट में सर। उसमें भी सर 2 ही। तो आप तो कह रहे हो 20 मिनट लगे, तो आरसी के लिए 10 मिनट क्यों? 20 मिनट बचे ना। हाँ सर, वही 20 मिनट में 2 ही हो पाई फिर, और उसमें भी सर टोटल 10 मार्क्स आए थे। ओके, लास्ट गेम का इसमें। कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? आपका नाम नहीं दिख रहा है, रेडमी दिख रहा है। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी। चलो कोई बात नहीं सिद्धार्थ, आप मेरे को यू कैन टॉक टू मी टुमारो, आई विल सजेस्ट व्हाट टू डू। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द पैसेजेस नाउ। अब इसमें देखो पैसेजेस में आपको मैं बताता हूँ कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पैसेज जो था वो करने लायक था। सेकंड को छूना भी नहीं था हमको। सेकंड छोड़ के बाकी तीनों किए थे। सेकंड छोड़ के बाकी तीनों किए थे। बहुत अच्छा किया। मैंने तो सेकंड भी कर लिया था, उसमें 3 अटेम्प्ट करे, तीनों सही हो गए मेरे तो सेकंड। बहुत बढ़िया। देखो अब आप एक आउटलायर हो इस वाली में, मॉक में। सेकंड वाला पैसेज जो था ना, बस पढ़ने में टफ था। उसके सारे क्वेश्चन जो थे ना सीटर थे। ओके, मतलब बस एक बार पैसेज पढ़ो और डायरेक्ट रेफरेंस है सर, मतलब कुछ भी। अच्छा, मैंने तो फोर्थ तो मैं पढ़ नहीं पाया, टाइम तो हो गया था। देखो अच्छा, आपने सौरभ कितने किए फिर? सर मैंने 4 पैसेज कर दिए थे, और ये में 6 किए, 4 सही हुए, और पैसेज में मैंने 16 किए, 2 गलत हुए उसमें।
ओके ओके, तो आपका व्हाट डिड यू गेट एज द फाइनल स्कोर? 51 आया सर। 51, ओके चलो दैट्स गुड। तो आपने जो लास्ट टाइम की आपकी वो थी वो पाप धो लिया आपने? यस सर, एक्चुअली मैं एक बार मॉक देने से पहले 3-4 घंटा सो लिया था। अच्छा। मतलब मैं बहुत फ्रेश होके मॉक देना चाहता था। ओके ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट द अदर एरियाज देयर आल्सो यू डिड वेल? सर VARC में क्या हुआ था कि थोड़ा सा टाइम, मतलब वो ऑड वन आउट है ना, मैं वहाँ फंस गया था। तो मैंने प्रायोरिटाइज किया कि पैरा समरी कर लिया, पैरा जंपल कर लिया, मतलब 6 अटेम्प्ट किए, 4 सही हो गए। ऑड वन आउट में इसी तरह 20 सेकंड बचे थे, तो ऐसे ही तुक्का मार दिया, गलत ही हो गया। तो पर आपने अभी बोला टफ थे, तो लुकिंग बैक मेरे को अपना डिसीजन सही लगा। अब देखो मैंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। मैं तो VA से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने तो पूरे पहले वही किए थे और हो गए थे, मतलब वो जितने टाइम में मैं चाहता हूँ उतने में, एंड देन आई हैड गॉन टू द पैसेजेस। तो ऑब्वियसली देन मैंने इसमें सबसे पहले ये वाला ये देखा था, तो इसमें नॉस्टैल्जिया और ये बातें हो रही, तो इजी है, इसको कर लेंगे पहले। देन आई लुक्ड एट द लिवर थिंग, तो वो लिवर थिंग तो चलो मैंने मतलब वो निकाल के रखा था आप लोगों के लिए, तो वो तो मैंने कर रखा था एक तरह से, तो आई हैड अनफेयर एडवांटेज देयर। बट ठीक है, कई बार फिर भी देखना तो पड़ता है उसको। एंड देन आई हैड टू डू दिस वन, सो आई चोज दिस 3, ठीक है। अब इसमें कर लिया, उसके बाद में जब मैं इसमें गया, तो अब इसमें जैसे इसमें क्या है, इसको करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो अगर लेट्स से आपके पास में 5-6 मिनट लास्ट में बचे हुए हों और आप इसमें जो है, अच्छा इसमें यहाँ से यहाँ तक तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया एकदम से, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है थोड़ा सा थिंग स्टार्टेड बिकमिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। यस सर। ठीक है, देन आई लुक्ड एट दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको फिर मैंने मार्क करके एंड देन सी आई काइंड ऑफ 6th भी इजी था। नहीं 6th इजी था, लेकिन 6th में प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये इसका एथिक्स जो है, इसमें इसको आइडियलिज्म बोल रहा है या ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म बोल रहा है। वो उसने क्लैरिफाई नहीं किया है पैसेज में कहीं पे भी, ये बता दूं मैं आपको। वो कह रहा है कि अज्यूम करके चल रहा है। वो यहाँ पे अगर आइडियलिज्म और ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के बारे में डिफरेंस बता रहा है, तो ही इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन दैट दिस इज, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि ये ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म होगा, लेकिन क्लियर कट उसने एक्सप्रेस नहीं किया है कि ये आइडियलिज्म है और ट्रांसेंडेंटल। नहीं सर, यहाँ पे उसने एक जगह लिखा था क्या? कि अगर तुम आइडियलिस्ट हो तो और मतलब खराब बात है, पर अगर तुम ट्रांसेंडेंटलिस्ट आइडियलिस्ट हो तो तुम तो ये देखिए सर, इफ यू आर ए ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा ये बताना मतलब। और सर बाकी जो ऑप्शन है ना, मैं मानता हूँ थोड़ा सा वो है, ABD जो है ना बहुत आसानी से एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, यू आर राइट। पर मैं वो मानता हूँ 100%। हाँ नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, बट वो ये कि लास्ट में जब टाइम नहीं है तो फिर मैंने तो उसको छोड़ दिए तीनों, मैंने कहा छोड़ दो इसको, तो आई लेफ्ट ऑल दीज 3 एंड देन मूव्ड ऑन। तो चलो ठीक है, दैट्स ऑल्सो, उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, मतलब आई वुड हैव मे बी हैड आई गॉट 3-4 मिनट्स मोर, देन आई कुड हैव स्टिल गॉन अहेड। तो ठीक है, चलो तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। सो अब देखो फर्स्ट वन में क्या आइडिया मिल रहा है हमको यहाँ पे। फर्स्ट वन में ये कह रहा है कि जो एक्सप्लॉइटिंग द पास्ट, रिच और इमर्जिंग कंट्रीज हैं इसमें, एक और ऑस्ट्रेलिया का आउटब्रेक हो गया दोनों तरह से, रिच और इमर्जिंग दोनों में। राइट लेफ्ट, डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी, सभी पुराने अपने ग्लोरी ईयर्स को याद कर रहे हैं, और डिफरेंट कॉज हैं डिफरेंट कंट्रीज में। ओके, इमर्जिंग मार्केट्स में पास्ट ग्लोरीज आर अ फोर स्टेट ऑफ फ्यूचर ट्रायम्फ्स। ओके, दैट मीन्स कि पास्ट को लेके अब फ्यूचर ट्रायम्फ्स की बातें कर रहे हैं वो, जैसे चाइना और इंडिया का एग्जांपल दिया उसने। Whereas rich world में contrastingly nostalgia is stemming from a menacing feeling or omnipresent feeling of decline, कि हम तो पहले past was so much better, okay, and now it's a bad time. Life used to be better. French do not feel at home in the present. Okay, Americans are becoming less content. So large majorities in rich and developing countries believe that robots and automation will increase equality. Poll of 28 countries, half. ठीक है, तो पॉइंट हियर इज कि जो डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमी, उनमें जो नॉस्टैल्जिया है दैट इज फॉर स्टेटिंग अ फ्यूचर ट्रायम्फ, whereas in rich world it is telling them, or they are trying to say that earlier times were much better and we are in a very bad situation now, it's the future is bleak. तो रिसर्च इनके पास में इतनी है कि हाउ emerging market optimism is more soundly based. Okay, so research says that emerging market optimism जो है कि आगे अच्छा होने वाला है, that is more soundly based than rich countries pessimism.
Okay, that means he's saying that this rich country's pessimism is not justified, that they are thinking that past used to be better. ऐसा नहीं है. People around the world are living longer, healthier lives, fewer fall victim, education spreads, and all these. Similarly, the summers were rarely as idyllic or the nation as glorious as sentiment have it. मतलब कि जैसा कि बताया जाता है कि पास्ट बहुत अच्छा था और इतना अच्छा टाइम था, ऐसा नहीं है. ओके, तो ही सेइंग, ये जो पैराग्राफ में इसके ऊपर डायरेक्टली एक क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे कि समर्स वर रेयरली एज आइडियलिक, टू हाईलाइट दैट. तो बताइए इसका क्या आंसर है? इसमें सही मार्क किया, गलत मार्क किया? सर गलत मार्क किया. क्या कर दिया? तो मैंने इसमें इसमें तो सही करा. disillusionment with the past. सर इसमें सही करा कि मैं सी होना चाहता था, मुझे सी मार्क किया था. डिसएग्रीमेंट विद द नॉस्टैल्जिया. एक ही है. सर मैं तो एक और बी में कंफ्यूज था और बी कर दिया. देखो, अगर हम बोल रहे हैं डिसएग्रीमेंट विद द नॉस्टैल्जिस्ट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट है इनका. डिसएग्रीमेंट किस बात पे है? कि जो लोग कह रहे हैं कि पास्ट बहुत अच्छा था, तो ये कह रहा है उतना अच्छा पास्ट कुछ था नहीं. लेकिन ये कोई कह थोड़ी रहा है, ये तो उनकी फीलिंग्स, उनकी जो जिस तरह से वो फील कर रहे हैं वो बता रहा है. तो देयर इज नो नॉस्टैल्जिस्ट हु इज क्लेमिंग इट. सी, हैड देयर बीन समबडी हु क्लेम्स दैट, ओके. तो अब जैसे ये इसमें एक सोफिया गैस्टन की बात करी इसने, लेकिन ये सोफिया गैस्टन जो है वो ये थोड़ी बोल रही कि पास्ट वाज बेटर. Almost 2/3 of Britain think that life used to be better. Similar share of French and all these Americans. तो इसमें नॉस्टैल्जिस्ट कोई नहीं है बताए गए. ओके, इसलिए सी हमें लग सकता है कि होगा, लेकिन सी इज नॉट करेक्ट हियर. ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर आर नो नॉस्टैल्जिस्ट हु आर रेफर्ड हियर. डिसइल्यूजनमेंट विद द पास्ट नहीं है इसका. देखो, ही इज नॉट डिसइल्यूजन विद द पास्ट. ही इज ओनली सेइंग दैट प्लीज डोंट असाइन दैट मच वैल्यू टू द पास्ट एज यू आर डूइंग इट. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका डिसइल्यूजनमेंट हो गया पास्ट से. Okay, past is there, past has got a role to play, but he's saying अगर आप ये कह रहे हो कि past बहुत अच्छा था, glorify कर रहे हो, और अभी खराब हो गया है, तो then that is not correct. So that he is giving his stance on glorification of the past. इसलिए ये इसमें correct, right? Okay. सर पॉपुलिज्म क्या होता है? पॉपुलिज्म मतलब पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट को जो आप फैन करते हो, मतलब मेजॉरिटी जो लोग सोचते हैं. हाँ, मतलब पॉपुलिस्ट मेजर्स, मतलब जो ज्यादातर लोगों को खुश करने के लिए होते हैं. सर अपीजिंग. हाँ, अपीजिंग. सब्सिडी दे दी किसी को, बिजली का बिल माफ कर दिया केजरीवाल, पानी माफ कर दिया, ठीक है, वो है. बट टू रिजेक्ट पेसिमिज्म एंड नॉस्टैल्जिया वाज सिंपली इनएक्यूरेट, मिसेस द पॉइंट. दे आर पावरफुल फोर्सेस, टू हार्नेस देम यू मस्ट अंडरस्टैंड देम. तो ये बोला ऐसा नहीं कि उसको डिसमिस कर दो, ये इंपॉर्टेंट है. Nostalgia serves them alike as anchor in a world being transformed. New technologies threaten to disrupt and blah blah 2 centuries. Okay, at such moment, people are drawn to nostalgia as a source of assurance and self-esteem. Many Brexiteers hope that leaving this will again belong to a dynamic Catalonia is in Spain, so they also want to get away from Spain. Okay, तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि हम नॉस्टैल्जिया को, अगर हम नॉस्टैल्जिया को, we are looking at a source of reassurance and self-esteem. In a rich world, nostalgia offers the way to rebel against somebody's idea of progress, to take back control. This makes nostalgia dangerous. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. इसमें कोई अच्छा xenophobia की बात हुई. ओके, तो ये किसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है? The self-esteem that nostalgists crave often feed to xenophobia. तो xenophobia क्या होता है? सर दूसरी कंट्रीज के लोगों के लिए. हाँ, मतलब intolerance towards people of different origin, race. Okay, generally people of foreign origin. अगर कोई migrants आपके यहाँ पे आ गए, आप उनको उनसे आपको hatred है, तो that is xenophobia. Okay, आप tolerant नहीं हो. तो because of taint of xenophobia, progressives are quick to treat all nostalgia as prejudice, leading them to dismiss the fear of whole section of society. That sweeping judgment is one more reason why populists have been able to exploit nostalgia so successfully. Okay. So यहाँ पे ये सब इसने बताया कि क्यों कैसे उसको जो पॉपुलिस्ट लोग हैं वो कैसे उसको एजेंडा को हाईजैक कर लेते हैं, एंड देन दैट गिव्स राइज टू फीलिंग्स ऑफ xenophobia and all of this. So let's look at the questions. Author's argument can be repudiated by which of the findings if they are true. क्या आंसर लिखा है इसमें बताओ? ये तो इजी था यार क्वेश्चन. देखो, अगर people across the globe feel the world was changing for the better, so this will defeat his this thing. No? His argument is that people in the world, most of the world, developed world, Western countries are feeling that
this today is a much worse time to live compared to past. तो इसको अगर आप negate कर दो कि people feel that world changes for better, तो ये उसको negate कर देगा ना, उसको weaken कर देगा. इसका मतलब है weaken करना. This is a weakening question, isn't it? Yes sir. तो ये तो easy था. सर Yes, मैंने सर आपको गलत बताया कर था दिया। इस पैसेज में सर. हाँ, तो आपने मैंने- क्या गलती कर दी भाई इसमें? सब गड़बड़ तो कर दी. हाँ सर मैंने तो सर सी मार्क कर दिया था. मेरे को सर रेपुडिएटेड वीकेंड की जगह वो उल्टा कर दिया मैंने. ओके ओके. The same thing happened with me. Same, sir. नहीं तो repudiate का मतलब तो weaken में आता है. हाँ सर पता था वो सर ध्यान नहीं दिया उसमें. ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी. All right. Progressives mistake nostalgia for bias because what nostalgists crave. देखो सर जीरो progressive बेसिक क्या जी? सर जो नॉस्टैल्जिया क्रेव करते हैं वो xenophobe मतलब जो दूसरे इंटॉलरेंट था ना बेसिकली सर वो. हाँ, intolerant. Correct. Yes. The nostalgists crave, okay, often seems to feed xenophobia, the self-esteem that nostalgists crave. So progressives mistake nostalgia for bias because what nostalgists crave leads to intolerance. Oh, xenophobia is intolerance, right? Whatever they crave, it leads to intolerance. So B becomes the answer. सर मैं बी और सी दोनों में 50-50 हो गया था. मैंने सी लगा के आ गया. गलत है. Rebellions, but how did you get rebellions here? सर वहां पे लिखा था ना कि मतलब ये समझ आ गया था कि जेनोफोबिया होगा, इंटॉलरेंस से फिर रेबेलियन होगा. Right. नहीं, but intolerance leading to rebellion ऐसा भी नहीं बताया हुआ. एकदम थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, isn't it? सर जैसे यहाँ लिखा ना पहला, इन द रिच वर्ल्ड नॉस्टैल्जिया ऑफर ए वे टू रिबेल अगेंस्ट समवन एल्स आइडिया ऑफ प्रोग्रेस. फिर हाँ. बोला कि नॉस्टैल्जिया डेंजरस होता है. अच्छा अच्छा. फिर लिखा है प्रोटेस्टर्स. मतलब यहाँ से बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था कि मतलब वो समझ गया था कि इंटॉलरेंस से रिबेलियन है. मतलब मैं दो इफेक्ट आ रहे थे और मैं यही समझ पा रहा था कि कौन सा मार्क करूँगा. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है. Alright, सर जनरली अगर ऐसे आता है तो हम कौन सा मान लीजिए ए से नहीं, लेकिन unless there is a direct correlation, देखो intolerance leading to rebellion, if there is a direct correlation, okay, जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता है इसने आगे कि it seems to feed xenophobia and which makes people rebel against the policies of the government which allow easier migration और relaxed migration. Suppose ऐसा होता कि ये यूरोप में जो आजकल गवर्नमेंट, कई गवर्नमेंट है जो माइग्रेशन के लिए इजी पॉलिसीज लगा रही, राइट, इमिग्रेंट्स आने दे रही, तो xenophobic लोग जो है वो दे विल रिबेल अगेंस्ट दोज पॉलिसीज. तो अगर ऐसा होता है कि दिस फीड्स xenophobia and that leads people to rebel against the policies of the government which allows for easier immigration and all that, तो आप बोल सकते थे कि वो पर डायरेक्ट लिंक नहीं बताएगी, इसलिए इसमें नहीं चलेगा. ओके ओके ओके, ये तो हो गया. फोर्थ डिफरेंस बिटवीन नॉस्टैल्जिया. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि इमर्जिंग कंट्रीज तो उसको एज अ सेंस ऑफ फ्यूचर ट्रायम्फ ले रही है. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, पास्ट ग्लोरीज आर ऑफन अ फोरटेस्ट ऑफ फ्यूचर ट्रायम्फ्स. और बाकी की जगह क्या है, बाय कॉन्ट्रास्ट ये इनको ब्लीक फ्यूचर दिख रहा है, ओमनी प्रेजेंट मेनेसिंग फीलिंग ऑफ डिक्लाइन. बहुत ही डूम्ड फील कर रहे हैं लोग, राइट. तो ये क्लियरली दिया हुआ है यहाँ पे. In the former, it indicates future triumphs, and latter it invokes a bleak future. आपको इसमें कौन सा लगा, बताइए, जिसने गलत मार्क किया है? सर यही था. सर इसमें सर मैंने डी मार्क कर दिया था. अरे यार एक मिनट, इमर्जिंग कंट्रीज में तो ऑस्ट्रेलिया को उसने पॉजिटिवली लिया है, ये तो गलत कर दिया आपने, ठीक से नहीं पढ़ा आपने, isn't it? यस सर. है ना, ये तो मतलब ये तो सिटर था. सर ए और सी में थोड़ी कंफ्यूजन है, मार्क बट सी करा, बट सर ए के अंदर सर उसने लिखा ना कि टेस्ट ऑफ सक्सेस, तो सर इमर्जिंग कंट्रीज तो उससे सक्सेस देख रही थी ना. सक्सेस कहाँ है? एक मिनट, अभी करंट सक्सेस बताइए कि फ्यूचर सक्सेस बताइए, बताओ. सर फ्यूचर मतलब बेसिकली ये देखो, पास्ट ग्लोरीज आर ऑफन अ फोरटेस्ट ऑफ फ्यूचर ट्रायम्फ्स. ओह ओके, गॉट इट. ओके ओके, करंट सक्सेस नहीं बताइए उसने, ठीक है. बट सर इसको मैंने फिर फेलियर की वजह से एलिमिनेट कर दिया, इसमें फेलियर लिखा था ना. हाँ, फेलियर नहीं है, फेलियर नहीं है, करेक्ट, सही किया. हाँ, फेलियर नहीं है, राइट.
सर एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे क्या होता है कि अगर मैं बाद में जब एनालाइज करता हूँ ना आरसीज वगैरह, तो सर मेरा 15 मिनट्स में आई एम एबल टू डू आरसी एंड सर मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। बट सर एक्चुअल मतलब उसमें मॉक में दे रहा हूँ तो क्या होता है कि क्या कहते हैं सर, एक या दो ही क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं और बाकी के दोनों गलत हो जाते हैं, फिर मैं 2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ जिनका मैं श्योर। बट सर मैं उसमें 6 to 7 मिनट्स में एक आरसी कर लेता हूँ और सर मैं आरसी अटेम्प्ट करता हूँ। नहीं तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप प्रेशर में नहीं कर पाते हो? तो प्रेशर की प्रॉब्लम मेरे को भी आ रही है सर बहुत ज्यादा। बट मैं प्रेशर की सर दे नहीं पाता। प्रेशर में नहीं कर पाते आप? ये सर क्योंकि सर मतलब सर मेरा ट्राई ये होता है कि सर मैं सारी की सारी आरसी से अटेम्प्ट कर दूं ऑल द नहीं, 4। मत करो ना, मत करो। बट सर मैं मत करो, डोंट बी टू एम्बिशियस। 3 तक देखो, अगर आप सी अगेन देयर आर 2 पर्सपेक्टिव्स हियर। अगर आप वीए सारे करने की कोशिश कर रहे हो, आरसी 3 पहले 3 करने की कोशिश करो यार। जब तक उसमें 3 में एक्यूरेसी, जैसे आपके 12 कर रहे हो ना, उसमें से जब तक 9 या 10 करेक्ट ना हो ना कंसिस्टेंट बेसिस पे, तब तक चौथी आरसी को मत छेड़ने की कोशिश करो। मतलब वो आप कर सकते हो अगर आप सी सपोज यू गॉट 2 मिनट्स लेफ्ट, 3 मिनट्स लेफ्ट एंड देन आपने थोड़ा सा पढ़ के कोई आंसर अगर एक आध क्वेश्चन बन गया तो बन गया। बट इफ यू ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द 4 ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। सर ऑल द 4 का मीनिंग सर ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन नेसेसरली अटेम्प्ट करता हूं सर। जो मुझे लगता है ना कि विद इन 1 मिनट मुझे पैसेज में फिर से जाना नहीं पड़ रहा और स्ट्राइक हो गया। नहीं, लेकिन देखो एक मिनिमम टाइम पहले बार पढ़ने में तो दोगे ना। अगर एक रीजनेबल उसको देगा ना, 3 मिनट तो लगाओगे पढ़ने में। हाँ सर 3 लग जाता 3 मिनट प्लस 1 और 2 मिनट, मतलब इतना तो मिनिमम अगर नहीं दोगे तो फिर देन इट इज नॉट वर्थ डूइंग इट। ओके ओके, तो मेरे हिसाब से आप 3 की तरफ फोकस करो, पहले 3 में एक्यूरेसी बढ़ाओ। जब तक आपका स्कोर एक रीजनेबल लेवल पे कंसिस्टेंसी में आ जाए ना 3 करके, तब तक चौथे की डोंट बिकम टू एम्बिशियस। ओके गॉट इट सर। ऑलराइट, ये वाला तो चलो अब डिस्कस कर लिया हमने, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करूंगा क्योंकि इसको आप अपने आप भी कर लेना। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस वन। दिस वन वाज अगेन आई वुड से कि इसमें कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ये सब था नहीं। ये सिर्फ इसका जो प्रेमाइस है वो क्या है कि आपका जो लिवर है उसके ऊपर इन्होंने रैट का जो लिवर जिसको एंटीबायोटिक दिया गया था उसको देखा कि उसकी सो यहाँ पे क्या बताया गया कि ये आपका लिवर है, ठीक है, और ये आपकी इंटेस्टाइन है, और आपकी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है। ओके, नाउ इफ दोज बैक्टीरिया आर अलाउड टू प्रोलिफरेट, तो वो इंटेस्टाइन से निकल के लिवर में पहुंच जाते हैं और फिर आपका लिवर डैमेज होने लगता है, राइट। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपका क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, ये बैक्टीरिया बेसिकली मतलब वो एक प्रोटीन भी आ गया इसमें। ओके, ये एक लेक्टिन करके जो प्रोटीन आया है, तो हैवी कंजम्पशन से ये सप्रेस हो जाता है, और ये जब सप्रेस हो जाता है तो ये बैक्टीरिया फ्लरिश होने लगते हैं, और ये जब फ्लरिश होने लगते हैं तो ये फिर इंटेस्टाइन से निकल के लिवर में पहुंच जाते हैं। सिर्फ इसका यही इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि अगर आप ये प्रोटीन इंटैक्ट रहेंगे आपके, तो आपके बैक्टीरिया जो है वो चेक्ड रहेंगे गट में, और वो लिवर में जाएंगे नहीं, और लिवर आपका ठीक रहेगा। ओके, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने ऑर्डिनरी माइस को इथेनॉल फीड किया, और एक जेनेटिकली इंजीनियर था माइस जिसके अंदर ये लेक्टिन मॉलिक्यूल्स नहीं थे। ओके, देन दे आल्सो मेड सम ऑफ द rodents got gut bugs to make bacteria flourish, मतलब वो उसको फ्लोरेसेंट बना दिया ताकि वो जब इंटेस्टाइन से लिवर में जा रहे हैं तो उनको दिखेगा, ओके, ट्रैक करने के लिए। तो दे डिड एज द माइस वर एक्सपोज टू मोर एंड मोर अल्कोहल, द ग्लो इन डार्क बैक्टीरिया अंडरवेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जैसे जैसे इनको ज्यादा अल्कोहल मिला, दैट मीन इनका ये वाला जो पेप्टिन था, ये लेक्टिन था, ये सप्रेस होने लगा, तो उनके बैक्टीरिया जो है वो एक्सप्लोड हो गए, काफी ज्यादा हो गए, एंड देन लेट देम एस्केप द इंटेस्टाइन। वंस आउट दे माइग्रेटेड टू लिवर वेयर दे ट्रिगर्ड स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शंस, और उसके कारण लार्ज वाइट ब्लड सेल्स वहां आ गए इन्फ्लेमेशन करने, और वाइट सेल्स themselves inflame, engulf and consume bacteria, but prolonged inflammation also damages host tissue. माइस दोनों अफेक्ट हुए, लेकिन जिनके अंदर लेक्टिन डेफिशिएंट थे उनमें ज्यादा अफेक्ट हुआ। ओके, उसमें काफी ज्यादा उसका लिवर डैमेज। ठीक है, तो देन उन्होंने रिवर्स किया कि एक माइस को ज्यादा लेक्टिन दे दिए, और फिर उसके बाद में चेक किया तो ये देखा कि जिनको लेक्टिन ज्यादा दिए थे दे कुड एंड्योर मोर एक्सपोजर टू अल्कोहल विदाउट डेवलपिंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। सो ऑल दिस सजेस्ट दैट जो टाइनी गट में आपके बैक्टीरिया हैं वो अल्कोहलिक लोगों को हेल्प करेंगे। तो अगली बार चबाने के पहले चेक कर लेना कि आपके गट में कितने बैक्टीरिया हैं। कम हो तो आप 2-3 एक्स्ट्रा ले सकते हो, और अगर ज्यादा है तो रुकना पड़ेगा।
ठीक है, ओके। सो एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई नहीं डाउट सर। नहीं किसी को? No, इसमें sir. तो सारे क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए फिर। Sir, Passage second outlines several hypotheses to arrive at the most convincing explanation that C. C, sir. alcohol consumption causes increased bacterial population to escape to the liver, causing. अच्छा, why not D? बताइए D में क्या दिक्कत है? डी किया था सर, डी किया था। अच्छा, आप Sir, बताइए। डी में bacteria from माइग्रेशन liver. फ्रॉम लिवर लिखा था। सी में सिर्फ लिवर में जाने की बात हो रही है, क्या एस्केप टू लिवर, तो वो तो एक पार्ट है उसका, मतलब लिवर में जाता है बाद में जब एग्जैजरेट हो जाती है प्रॉब्लम, लेकिन अरे आप एक चीज मिस कर गए अपूर्व, देखो From liver. from liver. This is wrong. The mass migration happens from gut or intestine. फ्रॉम की जगह टू होना चाहिए था। सर ये तो सर वर्ड प्ले कर गया, तो ये तो बहुत ही ये तो मिस हो गया, मतलब ये तो गलत ये phrase जो है ना, ये बहुत ही चीप हरकत है इसकी। Isn't it? ये तो ये बहुत मैंने भी मुझे भी डाउट हुआ था, लेकिन फिर मैंने ना लास्ट में वो फ्रॉम ध्यान आ गया और उसने बोला था कि लिवर में गए हैं, फ्रॉम नहीं गए हैं, तो फिर मैंने सी मार्क कर दिया इसका। करेक्ट। देखो ये पीठ पीछे छुरा भोंका इसने आपके, इसने सर इतने टाइम में पता कैसे चलेगा कि फ्रॉम क्यों? और ये नहीं होगा? नहीं तो दो, देखो वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको दो ऑप्शन बहुत क्लोज दिखते हैं तो हमारी जो टेंडेंसी होती है हम उनकी सिमिलैरिटी पे फोकस करने लगते हैं। आपको उस पर डिफरेंस देखना ना कि यार यहाँ तक बोल रहा है, अच्छा बैक्टीरियल पॉपुलेशन टू एस्केप टू द लिवर कॉजिंग टिश्यू, ये कह रहा है डैमेज ड्यू टू मास माइग्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, वो फ्रॉम बोल रहा है, वो पकड़ा में आ गया। आप उसके डिफरेंस को देखो ना। ये बस ये वहाँ पे सर इतने प्रेशर में सर एकदम से नहीं तो मना ये पड़ यार रहा देखो, एक मिनट देखो यार, अगर हमें IIM अहमदाबाद या IIM ऐसी जगह जाना है ना, तो ये तो प्रेशर, ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसी जगह जाने की बात कर रहे हो, अगर वहां से किसी अच्छे कॉर्पोरेट में जाने की बात कर रहे हो, तो वो जो प्रेशर, इनफैक्ट जो लोग, अगर कोई आपके दोस्त यार रिश्तेदार नॉन लोग किसी भी Tier 1 टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो उनसे पूछ लेना कि उनके क्या हाल हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि है किसी का है। है। सर हाँ मेरे उसमें है सर काफी सारे तो सर, फिर? लेकिन सर इसको कैसे बनाए फिर सर, प्रेशर कैसे झेलें? क्यों प्रेशर कैसे लो? वो तो अपने आप को देखो, आपको या तो मेडिटेशन थोड़ी सी करो, थोड़ा सा अपना मतलब मेंटल ट्यूनिंग करो, वो करो ना आप, थोड़ा अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, दोज आर वेरी हेल्पफुल टेक्निक्स। ट्राई टू कंट्रोल योर सब, मतलब सबकॉन्शियस को आपको जो मैसेजेस देने हैं। सी यू रीड, आई मीन इफ यू वांट आई कैन आल्सो, अभी तक ये सब टाइम नहीं है बताने का आपको। विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस, ये सब करना चाहिए। ओके, एक पेज पे सुबह लिखो 50 बार, यार आई विल क्रैक कैट दिस ईयर, आई विल गेट 99 परसेंटाइल दिस ईयर, आई विल गेट 99%। ये मतलब मजाक की बातें भी नहीं है, आई एम वेरी सीरियस हियर। ओके, यू विजुअलाइज योरसेल्फ। एक IIM अहमदाबाद की कॉरिडोर की या उसकी पिक्चर खींच के अपने सामने डेस्क पे लगाओ और उसको रोज देखो सुबह, और इमेजिन करो कि आप वहाँ एंटर कर रहे हो, यू आर देयर, यू आर टेकिंग योर प्लेस देयर। मतलब ये सब चीजें बहुत जरूरी है करनी। ओके, अगर आपको ये अपना जो प्रेशर के अंदर काम करना और ये सब भी संभालना है ना, तो ये सब चीजें भी अपने आपको थोड़ा अपार्ट फ्रॉम दिस, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, और प्रेशर के अंदर काम करने का तरीका ये होता है कि आप जो टाइम लिमिट अपने लिए सेट करो एक क्वेश्चन की, दैट मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट। जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डू इट विदाउट टाइमर, डोंट डू एनी क्वेश्चन विदाउट टाइमर। नंबर 2, टाइमर को टाइट रखो। अगर 2 मिनट आपको देने हैं अपने आप को, तो पहले 1.5 मिनट का टाइमर सेट करो। ट्राई टू गेट यूज टू इवन डूइंग फास्टर। ये बहुत जरूरी है। देखो गलतियां करोगे शुरू में, एग्रीड। आपने देखा होगा ना कोई भी कितनी पिक्चरों में, रॉकी उसमें वो कैसे ट्रेन पे ट्रेन करता है, माउंटेन में जाके दौड़वाएगा। भाग मिल्खा में वो उसको माउंटेन पे जाके दौड़वा रहा था, टायर बांध के दौड़वा रहा था। तो क्यों करते हैं वो? इसीलिए करते हैं ना कि वो आपको पहले टाइटर कंडीशन में, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको बाकी चीजें इजी रहेगी। इजी चीज पे प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो एनीवे ऑल ऑफ दीज आर जस्ट माइनर थिंग्स। सर जैसे अब लास्ट 50 डेज बचे हैं सर, अब क्या करना चाहिए लास्ट 50 डेज में? लास्ट 50 डेज सर जैसे बचे हैं एग्जाम में, ठीक तो है। सर अब कितना करना चाहिए रोज सर इंग्लिश को? नहीं, आप वो कितना करना चाहिए वो तो आप कौन से वाले शिवम हो यार, ये बताओ पहले तो। आप मेरे उसमें आते हो सेशन में? तो सेशन वाला नहीं हूँ सर, बट मैं जो सब कॉल पर तो सेशन में आओ ना आप यार, फिर मैं आपको अंग्रेजी में तो वहां पे सुधरोगे आप मेरे साथ में जितना करोगे। और बाकी उसके लिए भी आप चाहो तो सेशन ज्वाइन कर सकते हो QA और DRLR के। और नहीं करना हो तो आपको मैं बताता हूँ, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट 5 ईयर के पेपर कर लो अच्छे से। 5 years QA एंड 5 years DRLR पास्ट, ये बहुत अच्छे से कर लो अगर नहीं किए हो तो।
सर पेपर्स मैं कर रहा हूँ सर, बट बिना टाइमर के ना, सब बस बिना टाइमर के ही हो रहे हैं वो। नहीं, बिना टाइमर के करने से क्या फायदा फिर बताओ? बिना टाइमर के करने से कोई फायदा नहीं है। बिना टाइमर के करने से फायदा नहीं है ना? ये तो करना पड़ेगा आपको। चलो इसके बारे में आपकी इंडिविजुअल, आप मेरे को कल तो टाइम नहीं मिलेगा, एक आध दिन में आप मेरे को मैसेज करना, देन आई विल स्पीक टू यू, ठीक है? मे बी मंडे वुड बी अ बेटर डे। ठीक है। चलो, ऑलराइट। विच आउट विद द फॉलोइंग वुड ऐड द लीस्ट डेप्थ। ये भी एक वीडियो में छुरा भोगने वाला क्वेश्चन है अगर आपको तो। ये इस तरह के इसने बहुत मतलब चीप हरकतें की है यहाँ पे, जैसे कि ये इस वाले में भी वही की है। बताइए क्या? सर सी। सी। सर मैंने तो छोड़ दिया था ये, मेरे को नहीं, ये क्योंकि देखो, ये कोई मतलब वो बोल रहा है लीस्ट डेप्थ, अब ये बोल रहा है कि ये तो ना ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पे। यार ये गलत तरीका है, ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं। ओके, दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन इफ यू आस्क मी। आई मीन इन द सर सेंस वही दिस इज अ सोचा स्टूपिड कि मैंने ऑप्शन। तीनों ऑप्शन जो हैं वो कुछ ना कुछ डेप्थ ऐड कर रहे हैं, एक पहले ही दिया हुआ है तो इसको कर देते हैं। नहीं, वो आपने ठीक किया, लेकिन जनरली क्या है ना कि इसको भी तो आदमी थोड़ा सा इसमें जबरदस्ती का टाइम वेस्ट होगा ना। उसको लगेगा यार ये भी तो एक असेसमेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ रोडेंट्स एंटी बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम इन इट्स गट टू ग्लोबल अल्कोहल एक्सपोजर, दिस आल्सो इज अ रेलेवेंट पॉइंट, इज इट नॉट? यस सर। देन अब ये बोल रहा है कि ये तो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। अरे यार ये कोई मतलब ये कोई क्वेश्चन बनता है क्या इस तरीके का कोई? सर वही इसके बेसिस पे समझ ही नहीं आया था ऑप्शन कौन सा हाँ, करूं। तो आपकी गलती नहीं है, इसके लिए भी आप अपने आप को दे सकते हैं पूरा मार्क। देखो ये जो है ना, ये बहुत ए कर दिया था। हाँ क्यों? ए। ये तो नहीं, ये तो ठीक है यार, ये तो बहुत रेलेवेंट है। ए को क्यों कर दिया आपने? क्योंकि सर आपको डी। सर मैंने डी बी कर कर दिया था। देखो बाकी सब अगर सर बी आपने किया करे था। तो गलत किया, ठीक है? बाकी तो यार ये तो बहुत रेलेवेंट है ना। ये आपको बढ़ाना है लोगों के इसमें, यू हैव टू इंक्रीज दिस प्रोटीन। सर पर ऑथर के आर्गुमेंट में तो डेप्थ नहीं इंक्रीज कर रहा है ना। हाँ जी, ऑथर के आर्गुमेंट में कैसे डेप्थ इंक्रीज कर रहा है ये? क्यों? सर मतलब ऑथर का आर्गुमेंट है कि ये चीज हेल्प करती है और उसने इन दी एंड प्रूव कर दिया है। नहीं अब नहीं नहीं कोई नहीं, नए तरीके से अगर हम बूस्ट कर सकते हैं तो वो हेल्प नहीं कर रहा है ना उसके क्यों आर्गुमेंट। हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? ऑथर भाई, अगर देखो ऑथर क्या कह रहा है, एक मिनट, व्हाट इज ऑथर आर्गुमेंट? दैट इफ योर गट हैज दीज लेक्टिन्स, then you will be able to suppress the bacteria better, right? ये बात Yes, तो है, ये बोला है उसने, करेक्ट? yes sir. Now if you find a new way to boost production, then will it not add depth to the author's argument that yes, this is a very effective way and there is a new way to do it? So this is making this add depth, मतलब क्या है? It is making it more credible or making it more or making it stronger. हाँ सर, पर बेसिकली ऑथर का आर्गुमेंट इस पे है ना कि इस जो ये जो प्रोटीन है लेक्टिन्स हैं, सब बेसिकली इनका इंटरेक्शन विद अल्कोहल एंड नहीं, इनका इंटरेक्शन विद अल्कोहल नहीं है। एक देखो, मतलब टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज हियर, व्हाट ही इज सेइंग इज दैट दीस लेक्टिन्स suppress bacteria in the gut, and if they are not there, then the bacteria proliferate and move from intestine to the liver and thus cause the damage. So if you have more of these lectins in your intestine, that means the suppression of bacteria will happen and therefore you can take more amount of liquor. तो ये तो जरूरी है ना, आपको बता रहा है। तो अगर आपका कोई तरीका है जो कि बूस्ट कर रहा है इनके प्रोडक्शन को, तो वो हेल्प कर रहा है ऑथर के आर्गुमेंट को। अच्छा सर, है ना? दैट वे यू हैव टू लुक एट इट। ओके सर। ओके, ए को एक्सप्लेन करना। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशंस इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ अल्कोहलिक्स एंड नॉन अल्कोहलिक्स। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है ये भगवंत मान और यहाँ पे खड़ा हुआ है अमिताभ बच्चन, टी टोटलर, नॉन अल्कोहलिक, तो इसकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन का एनालिसिस किया है, ठीक है? तो वहां पे मिलियन बैक्टीरिया निकल गए और इनकी किया गया तो वहां पे 200 बैक्टीरिया निकले। तो ये ऑथर क्या इसमें स्ट्रांग हो गया कि नहीं हो गया कि अल्कोहलिक की जो गट है उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं एंड दे मूव फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर, और इनकी गट में नहीं निकले, ये नॉन अल्कोहलिक है। तो इसको बूस्ट हो गया ना इसका, ये तो डेप्थ ऐड हो गई ना उसके आर्गुमेंट। सर ये भी पैसेज में दिया हुआ है ना सर, ये फर्स्ट ये वाला पॉइंट भी तो मतलब कि अल्कोहलिक्स में डिफरेंस होता है पॉपुलेशन। यस वो गिवन है। तो ये भी तो पैसेज में दिया ही हुआ है, मतलब सी की तरह। हाँ, तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि ये स्टूपिड क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग।
कि नहीं ये आप तो कहते हैं ए रिलेटेबल है, इररिलेवेंट है दैट वे आपसे नहीं, ए भी रेलेवेंट, ये तो चारों ही रेलेवेंट है। अच्छा वैसे मैं तो ये कह रहा हूँ चारों ही रेलेवेंट है। इसने उसको हाँ सर 3 को वही बता दिया। उसने देखो, मैं बता रहा हूँ उसका जो जवाब है ना, उसने 3 को कैसे एलिमिनेट किया कि बोलता है ये तो दिया हुआ है। ओके, तो ये भी तो दिया हुआ है एक तरह, पर ये इतना एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है, कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया उसने। ठीक है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक का नहीं किया उसने, चूहों में ये करके दिखाया है। ठीक है, चलो ओके। Which of the following choices correctly summarizes the consequence of alcohol exposure in lectin augmented mice? ये तो बहुत इजी है यार। डी सर, हाँ, डी 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 हाँ डी करेक्ट। दे कुड एंड्योर एक्सटेंसिव एक्सपोजर। ये बहुत ज्यादा टुन हो सकते हैं। ठीक है, पूरी बॉटल इनको कोई फर्क नहीं करेगी। सर इसमें सिली मिस्टेक हो गई थी। क्यों सर लेक्टिन ऑगमेंटेड और वो एक और उसके पहले डेफिशिएंट, लेक्टिन डेफिशिएंट डेफिशिएंट यूज करा था, तो सर वो उससे कंफ्यूज हो गया और ध्यान नहीं दिया वापस ओ, पढ़ने को। तो आपने उल्टा डाल दिया ये। यस सर, सी मार्क कर दिया सर। ओहो, सेम सर, सी मार्क किया सर। अरे यार सर ये तो बहुत ही आपने ये तो छक्के वाली बॉल पे बोल्ड हो गए आप। वही सर, एकदम रोना आ गया था। तो हाँ, सी दिस इज नॉट सर सी गलत कैसे है? सी वाला पार्ट गलत कैसे है? क्योंकि ये तो डायरेक्ट उन्होंने लिखा था कि 50% जो है वो ग्रेटर होता है। नहीं, आप देखो, आप समझे ना इसके, तो ये तो बेसिक आर्गुमेंट मैंने आपको बताया था ना कि लेक्टिन अगर आपके पास में है तो लेक्टिन जो है, तो लेक्टिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया। मतलब अगर ज्यादा लेक्टिन है आपके पास में तो आपके बैक्टीरिया कम है। तो अगर बैक्टीरिया कम है तो आपका बैक्टीरिया लिवर में नहीं जाएंगे तो लिवर डैमेज नहीं होगा, तो आपका लिवर जो है वो ज्यादा लिकर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये रिलेशन है ना। तो लेक्टिन अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा इंड्योर करोगे अल्कोहल एक्सपोजर। अगर आपके उसमें लेक्टिन नहीं है, जैसे यार आपने आपकी स्टडी को थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना, वो स्टडी में पहले क्या किया उसने, पहले 2 चूहे लिए, उसमें एक का लेक्टिन गायब कर दिया, तो उसको बहुत डैमेज हो गया। ये देखो आप, ये सर देखो, सेकंड लास्ट पैरा पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ एक्सप्लिसिटली हाँ मतलब उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, तो इसलिए इसको आपने गलत समझ लिया है। मतलब आप, आई डोंट नो, आप ये देखो, इसमें ये रीडिंग तो करके हमें तो निकाल लेना चाहिए था। दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। According to the passage, the awareness of which of the following formed the rationale of Dr. Schnabel? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके पहले ही दिया हुआ है, देखो उसने जहाँ पे स्नाबल का नाम लिखा है उसके पहले ही दिखा हुआ है, ये देखो 5 years ago that knowledge prompted him to start looking. What knowledge? कि livers of mice that were given antibiotics were clear, which clear their intestine, that they are dosed with propofol. बहुत clearly तो दिया हुआ है यार, बताइए। livers of mice that were given antibiotics before they were exposed were less damaged. Very clearly he has given this. तो मतलब ये गलत करने का तो कोई स्कोप है ही नहीं मेरे हिसाब से तो। यस सर। सर वही बस जल्दबाजी में थोड़ा सा, हाँ मतलब ये शनाबी वाला का बिल्कुल उसके जस्ट पहले ही लिखा हुआ है कि ये तो सही हो गया, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ओके, चलो कोई बात नहीं, जो भी किया गलत किया तो, लेकिन द पॉइंट इज दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर वी मेकिंग, मतलब अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं तो क्यों उसमें गलती होगी, वो नहीं होनी चाहिए। देखो यार, मतलब मेरा ये सवाल है कि ये पैसेज जो है इससे हम बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ अस, आई मीन नॉट ऑल, एटलीस्ट सम ऑफ अस वुड बी consuming alcohol. We know already what is liver, we know already what is intestine, and all these things. तो इससे हम रिलेट भी कर सकते हैं and we can understand this. हाँ, ये वाला चलो आपने गलत किया या ये समझ नहीं आया तो वेरी वेल अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो चलो ये वाले में गलतियां नहीं करनी थी। और लास्ट वाला करते हैं, ये भी बहुत इजी पैसेज था अगर देखा जाए। इसका आर्गुमेंट सिर्फ ये था कि जो आपने, ये एक एडवांस प्लेसमेंट बोर्ड है, ये कह रहा है कि हमें हिस्ट्री जो है ना वो 1450 से स्टार्ट करनी चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके पहले की हिस्ट्री को हटा दो। इस तरह का स्टूपिड इसने आर्गुमेंट किया। और तो इसके अगेंस्ट में ये ऑथर ये कह रहा है कि यार अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे कि 1450 के बाद में तो जो यूरोपियंस डोमिनेट करने आ गए, तो और उसके पहले जो जो हुआ, ओरिजिन ऑफ अल्फाबेट, एग्रीकल्चर, ये सब का क्या होगा। और बिफोर 1400 दूसरे लोगों ने एम्पायर बिल्डिंग किया और ये सब किया, तो उनको कैसे आप निग्लेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अंडर प्रेशर द एपी कॉलेज बोर्ड रिट्रीटेड, तो इन्होंने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं कि हम 1200 से शुरू करते हैं, मतलब ये जैसे सब्जी भाजी खरीद रहे हैं
कि चलो 1450 से नहीं, हम 12 से कर देते। तो where does that leave Plato, Aristotle, Greece, Rome? Presumably none are foundational to the modern era. That in itself is strange, because Mark Zuckerberg, a poster boy, admits to Emperor Augustus as his role model. बोला कितनी ये ironical बात है कि तुम इन सब चीजों को you are ignoring in the history, and your Mark Zuckerberg, a poster boy for new, he is admitting that this fellow is my role model. Okay, जो कि उस जमाने का था. Gone to is China of Han Dynasty, networks that linked, and all of these. So he's saying that if you are starting history from 1200, then you are discounting all of these things as if these were non-events, which is a great fallacy. History that is exciting and stimulating when there is scope to look at connectivity, to identify and work through deep rhythms and trends. To explore the past by challenging assumption that the story of the world can be charted through a linear progression. So he's saying that आप अगर history के लिए जब exciting उसको बनाओगे, जब आप ये कहोगे कि history ऐसा linear progression नहीं है कि ये event हुई, इसके बाद ये हुई, इसके बाद ये हुई, इसके बाद ये हुई, ऐसा linearly नहीं चलता है. Okay, as the AP College Bull seems to think with this statement linking 1200 with the modern era. It's not a linear progression. It is an interconnected web of events. If you really want to see how foolish this view is, take a look at front pages in any country. China, the news is dominated by Belt and Road Initiative. Chinese plan to re-galvanize the Asian networks. So ये पुरानी चीजों को revamp कर रहे हैं. And this is the most important geological development in the world today. Understanding why this, तो ये इसने example दिया है कि जो चीज past से link की जा रही है वो कितनी important है. That is the most important event in the world today. And if we are not willing to look at that, then we are kind of fools. Students taking world history courses that began in 1200 will not learn about any of these topics, even though their peers in college and school around the world will. तो जो हिस्ट्री कोर्सेज लेंगे यहाँ पे अमेरिका में, उनको इस सब टॉपिक्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा, जबकि जो दूसरे दुनिया में, ये दुनिया में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यूएस में ऐसा हो रहा है. Education should expand and horizon and open minds. What a shame too this is happening at a time of profound global change, where understanding the depth of our interconnected world is more important than ever. Okay. So primarily he is saying that history को linearly progression करते हुए नहीं देखा जा सकता है. It is an interconnected web of events. और आप अगर किसी भी एक certain date से चालू करते हो, चाहे वो date कोई भी हो, he is not saying, author is not, see ये जो 1450, 1400, 1200 लिया गया, ये कोई इसलिए नहीं लिया गया कि कोई specific date की बात की जा रही हो. उसका सिर्फ बताने का ये बात है कि किसी भी एक specific date से अगर आप history को चालू करते हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद ही जो चीजें हुई है वो important है, और जो उसके पहले की जो चीजें हैं, because history is interconnected. Okay. All right. Any doubt? सर कहाँ लिखा है इंटरनेट कनेक्टेड वाला? इंटरकनेक्टेड वाला कहाँ लिखा है? ये यहाँ से आएगा ना, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर. अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना. ओके. ऑलराइट. The criticism levied against AP for bringing world history from a specific date. बताइए. सर मैंने इसका सी मार्क किया था. सॉरी डी. सॉरी. अब देखो इसमें हमने क्या, इसमें I think what mistake we do is that we look at this as 1200 or 1400 or 1450. That is not what is meant to be. This is giving a little deeper meaning here. Any specific date. So that date could be even 0 AD, let's say 1 AD. सर बट एपी ने बोला ना, एपी ने तो 1200 ही बोला है. नहीं, बट ये इसने फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेट बोल रहा है ना ये. ठीक है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेट. दैट मींस इट कुड बी एनीथिंग. अर्लियर इट वाज 1450 बोल रहे थे, फिर 1400, फिर 1200 बोला है आपने. ठीक है, तो इसका क्या वो है? सर क्रिटिसिज्म तो एपी के 1400 वाले स्टेटमेंट ही हुआ था ना, उसके अंदर उसने चेंज करके 1200 कर दिया था, पर उसके बाद में सर क्रिटिसिज्म जो एपी बोर्ड का जो डिसीजन था 1450 1400 वाला था सर, उसके बाद में बेसिकली क्रिटिसिज्म उठा और उसने चेंज करा 1200 करा सर. अच्छा चलो ठीक है, तो इसके हिसाब से बताइए कौन सा है? डी सर. मैंने तो डी तो मैंने इसका ए मार्क किया क्योंकि बी सी डी तीनों ही इसके थोड़े थोड़े ऑप्शन लग रहे हैं, तो ए थोड़ा ज्यादा जनरलाइज लग रहा है. करेक्ट. नहीं एक मिनट देखो क्या खाली यही क्रिटिसिज्म है कि एडवांसेस इन साइंस, मेडिसिन एंड फिलॉसफी हैवंट बीन रिप्रेजेंटेड फेयरली?
कि ये भी है कि जो यूरोपियन लोगों को आपने किया और जो बाकी लोगों ने जो एम्पायर बनाया उनको क्या है? दूसरा, वेरी लिटिल हैज बीन इंक्लूडेड अबाउट प्लेटो, एरिस्टोटल एंड ग्रीस एंड रोम। व्हाट अबाउट आपने जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एग्जांपल दिया कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट ही वही हो रही है, तो उसको तो आपने उसको भी इग्नोर। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कुछ भी बोलो, अगर ये छुट्टी, ये सब चीजें पार्शियल है। वी कैन नॉट स्टडी द पीरियड डोमिनेटेड बाय यूरोपियंस व्हाइल इग्नोरिंग द अदर्स हु डिड द एम्पायर बिल्डिंग। अगेन, इस वाले में हमने एम्पायर बिल्डिंग की खाली बात करी है, हमने इन सब लोगों की बात नहीं करी है, ठीक है। इस वाले में हमने इन सब की बात नहीं। द पॉइंट इज ऑल ऑफ दीज थ्री आर गिविंग यू सम पार्ट इश्यूज, that is not what is the or this option, this answer is looking at. They are looking at a general thing, that history is less linear and more an interconnected web of events. This is the criticism, that you should not take any specific date. चाहे आप 1200 का आप 1000 भी ले लो, वो भी नहीं लेना। You cannot take any specific date as a world history. ओके सर, बट मैंने इसका ऐसे किया था कि एपी पढ़ा स्टार्टिंग में और स्पेसिफिक डेट थोड़ा सा पढ़ा, तो उसने 1200 कुछ बोला था, तो उसके आसपास यूरोपियन वालों की बात हो रही थी। नहीं ठीक है, आपने कौन सा मार्क किया, चाहिए बताओ। मैंने डी मार्क किया, फिर वो तो अब नहीं, मुझे लेकिन समझ आ गया कि ब्रॉडर हाँ, आइडिया लेना है। हाँ नहीं, क्योंकि मेरे को हर एक में, उसने जैसे अगर आपने ये उसने मार्क किया तो ये मिस कर दिया आपने, ये दोनों मिस कर दिए, है ना। और अगर ये मार्क किया तो आपने ये मिस कर दिए, ये मार्क किया तो ये दोनों मिस कर दिए, लेकिन ये मार्क किया तो इसमें सभी कुछ आ गया। समझ गया मैं, उसने क्वेश्चन में एपी का एग्जांपल दिया है कि एपी हाँ, ने हाँ, क्यों बोला कि स्पेसिफिक डेट का, लेकिन कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि 1400 से स्टार्ट करो। करेक्ट करेक्ट, समझ गया मैं। ठीक है। चलो, ऑथर मेंशंस मार्क जकरबर्ग, ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो इजी है। यस सर, है ना। यस सर। तो मॉडर्न एरा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल एंड इवेंट्स मच अर्लियर देन 1200, राइट। Which of the following doesn't corroborate the crux of the author's argument? डी। So ये वाला सर गलत हो गया था इसमें सर, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए। क्यों? इसमें इसका क्या मतलब है सर? क्योंकि मुझे लग रहा था डी तो सर की corroborate नहीं नहीं, एक मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसको तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो इट मींस which of the following doesn't strengthen, yes sir, right? That means कि इसमें से बाकी सब तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है, वो कौन सा है? तो अब आप देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है उसको, हाँ सर, है ना। मार्क जकरबर्ग भी स्ट्रेंथन कर रहा है। नेटवर्क्स दैट लिंक टू अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द कनेक्टिविटी, ये भी, ये तीनों स्ट्रेंथन कर। द स्टार्ट डेट फॉर एपी कॉलेज बोर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री कोर्स हैव बीन नच्ड बैक टू 50, ये थोड़ी स्ट्रेंथन कर रहा है। ओके, ये तो एक जस्ट फैक्ट बता रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। It is not doing anything to it. Okay. yes sir, All right. According to the author, which is the difference between world history before and after? इसमें भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है, बताओ। वर्ल्ड हिस्ट्री बिफोर, बी किया था सर। सर इसमें भी सिली मिस्टेक हो गई, डी मार्क कर दिया था। मैंने भी डी किया था। ये भी बेवकूफ बनाने वाला, पीठ पे छुरा भोंकने वाली बात है इसमें भी। Former excludes the contribution of Europeans. The difference between world history before and after the 1400. So former excludes the contribution of Europeans to world history. Latter is more about empire building activities of non-European. ये तो गलती है, right? Yes sir. All right. Latter charts the tale of European domination. ये तो सही है। अरे हाँ सर, इसमें भी सिली मिस्टेक हो गई, यूरोपियन की तो बात 1400 की बात करी थी। हाँ, तो 1400 के बाद की है ना। हाँ, मैं वही वाली बात हो गई जो अब छुरा घोपने वाली, पहले क्वेश्चन में बच गया, इसमें फंस गया। हाँ ठीक है। सर चलो, तो मेरा क्वेश्चन है सर, सर इसमें मस्ट बी नहीं होना चाहिए कहीं पे, मतलब क्वेश्चन में 16th वाले में सर कहीं पे मेंशन नहीं होना चाहिए मस्ट बी टू या समथिंग ऐसा कुछ। Which of the following must be a difference? यस सर, क्योंकि सर क्योंकि डी भी एक डिफरेंस तो है, क्योंकि 1400 के बाद नहीं हम बोल रहे हैं कि यूरोपियन डोमिनेंस आया, तो उसके पहले तो कुछ कंट्रीब्यूशन था यूरोपियंस का। The former excludes the contribution of Europeans. सर बट बी और डी सेम बात नहीं कर रहे एक तरीके से। एग्जैक्टली सर, वो मस्ट भी होता तो सर मैं बिल्कुल बोलता कि बी है सर, पर वो मस्ट भी नहीं था तो मैं लगा फिर डी भी।
मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। सर बी और डी सेम बात नहीं कर रहे कि पहले वो कह रहा है फॉर्मर में यूरोपियन नहीं है, एक्सक्लूड है, तो डी सही हो गया, और बी में वो कह रहा है कि पहले वाले में यूरोपियन है, वो मतलब बाद फॉर्मर वाले में यूरोपियन है, तो बात तो वही हो गई ना एक तरीके से, कान इधर से पकड़ा है उधर से, कहने का मतलब तो एक होता है। बट एक्सक्लूड्स में ये होना चाहिए ना कि कोई कंट्रीब्यूशन था। नहीं देखो उसमें इसमें कह रहा है clearly, कि मेजर कंट्रीब्यूशन उसका 1400 के बाद। हाँ मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसका नहीं है। ओके देखो वो ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको क्लियरली अगर हम पढ़ेंगे ना तो वो क्या कह रहा है देखो, in practice beginning 14 world history becomes a story about how Europeans came to dominate not all but all the other continents. Okay, but he is not saying that उसके पहले उनका कोई contribution नहीं था या 1400 के पहले अगर कोई बनेगी तो उसके अंदर उनका contribution नहीं। ये तो dominance वाली बात कर रहा है कि 1450 के बाद अगर आएगी तो सिर्फ उनके domination की बात करेगी, लेकिन अगर उसके पहले होगी तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि वो contribute नहीं करेगा कुछ भी, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना वो। तो इसलिए ये एग्जैक्टली वही बात नहीं है कि इसको कान को इधर से पकड़ा, वो नई बात होती, ऐसा लग रहा है हमको। ओके लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोपियन डोमिनेशन इज द करेक्ट थिंग टू। ओके अगर यहाँ पे लिखा होता कि द फॉर्मर एक्सक्लूड्स द यूरोपियन डोमिनेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री तो आप बोल सकते थे कि वो सही है, सेम है। यू गेट द पॉइंट। अगर यहाँ पे ये हटा देते हैं हम और इसी जगह लिख देते यूरोपियन डोमिनेशन ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, ओके, then this also would have become the same as this. ओके सर, है ना, ये समझ में आ गया ना पॉइंट। थोड़ा सा इसमें सटल डिफरेंस है। यस सर। चलो इसीलिए बस मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में अगर मस्ट भी होता तो ये क्वेश्चन बड़ा क्लियर हो जाता। हाँ वो तो देखो उन लोगों की एम्बिग्युइटी है वो हमको, थोड़ी चले जाती है। हाँ सी आई हैव बीन ऑलवेज मेंटेनिंग दैट ये तो थोड़ा सा है ही है, मतलब इनमें गैप तो है ही, दे आर नॉट एज प्रिसाइज एंड क्लियर एज इट शुड बी। यस सर। ठीक है चलो फाइनली व्हाट्स द टेक। तो जो गलतियां की थी हमने समझ में आ गई। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो आगे अगले बार नहीं करोगे? नहीं सर, होपफुली कोशिश तो रहेगी। कोशिश रहे। ठीक है चलो ऑल राइट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस और ये सब रेगुलर इससे ही बढ़ेंगे ना? हाँ क्या क्या कम अगेन? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो जो हम प्रैक्टिस सेशंस हाँ करते हैं हाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो जो हम प्रैक्टिस सेशन में कर रहे हैं, टाइमिंग के अंदर करना हमारा जो है वो Yes, सब sir. डेफिनेटली उससे बढ़ेगा, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैट स्ट्रिक्ट थिंग। ओनली थिंग इज आई हैव सीन दैट सम पीपल आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट ड्यूरिंग द टेस्ट, दैट उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ टाइम। तो वो आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ओके, यू शुड नॉट स्ट्रेच जो हार्ड होना चाहिए। इसलिए जो आप सेक्शनल टेस्ट वाली बात कहते हो ना कि जो कुछ सेक्शन आप एक सेक्शन टेस्ट बना दोगे 40 मिनट का और फिर आप हमको भेज दोगे और फिर हम डिस्कस करेंगे, तो वो थोड़ा सा अगर हफ्ते में 2-3 बार कर लें वो सही रहेगा, क्योंकि मतलब प्रॉपर सेक्शनल टेस्ट वो हेल्प करते हैं। आप इंडिविजुअली करते हैं तो आप डिस्कस करते हो और क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक गैप पड़ जाता है, गैप लगातार करने से फर्क पड़ जाता है। ठीक है विल डू दैट, डेफिनेटली विल डू दैट। ठीक है सर अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही तो पैसेज कम करके देखूं, मैं 3 अटेम्प्ट मार रहा हूँ और 10-8 जा रहे हैं मिनट्स। हाँ नहीं फिर एक थोड़ा सा कम करके देखो, 2 पैसेज मतलब अटेम्प्ट मार के। आप उसको इस तरह से देखो कि यार मुझे कैसे भी करके 10 क्वेश्चन सही आने हैं। ठीक है अब आप 8 जैसे आपने 2 पैसेज किए 8 और प्लस 6 क्वेश्चन बीए के किए, तो अगर आपको लग रहा है हाँ 14 में से मेरे फिर 10 सही है तो ये ठीक है, ये अच्छा अप्रोच है। ठीक है बट देन 14 में से आपके फिर 10 करीब करेक्ट निकलने चाहिए। अगर 10 भी करेक्ट होंगे तो 4 गलत हो जाएंगे तो 26 तक 26 30 के बीच में। तो 4 जरूरी थोड़ी 4 आपके इसमें से गलत हो। हाँ मतलब मैं मैक्सिमम क्या see again my point is that right now if you are in the zone of between 20-25 or 15-20-25 then even this is worth reaching first ना। हाँ मतलब हमें ऐसा नहीं ना कि we should aim for 40 straight away, वो तो ज्यादा एम्बिशियस हो जाएगा। पहले एक बार 30 पे तो कंसिस्टेंसी लेके आए हैं, तो वो आपको वहां पे आई थिंक दैट विल हेल्प। जो मैं सेक्शनल बना के आपको दूंगा ना अब कि जो 40-40 मिनट के, वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप वीक में को 2-3 बार कर लोगे। वो अभी क्या है कि सिर्फ एक मॉक से वो नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे, राइट? सर अगर सेल्फ करना हो तो सर अगर सेल्फ करना हो सर, अगर सेशन अटेंड ना करूं मैं, हाँ तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए सर सेल्फ स्टडी के लिए लास्ट डेज में? नहीं सेल्फ स्टडी के लिए तो आप क्या मतलब थी
एज आई सेड कि आप वही करो यार, जो मतलब पिछले साल वाले हैं वो कर लो, और मतलब उन्हीं को आप वापस करते रहोगे तो भी मेरे हिसाब से तो काफी हेल्प मिल सकती है। इवन बीए में भी आप अगर उन्हीं को कर लो, प्लस जो मेरा टेलीग्राम पे जो मैंने मटेरियल डाला है उसको रिव्यू करो, उसको वापस करो, सीआर उसमें से करो, दैट इज व्हाट आई कैन रिकमेंड। तो फिर भी सर डेली कितने पैसेजेस? नहीं पैसेजेस देखो यार, डेली अगर आप 2 भी करोगे या 3 भी करोगे तो दैट इज गुड इनफ। ओके, डोंट एम फॉर कि डूइंग में 10 पैसेजेस या 5 पैसेजेस, उससे कुछ नहीं होगा अनलेस यू आर इम्प्रूविंग। देखो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हमने 2-3 किए, गलत हो गए, वो चौथा करते हैं, फिर भी 2 सही आए उसमें, फिर 5वां करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा ना। जब तक आप वो जो पीछे किया उसको तो रिव्यू करो। जैसे आज कोई हमने पैसेज किया एक XYZ, ठीक है, सपोज करो वी डिड अ पैसेज ऑन फ्रिडा कालो, द पेंटर इन मेक्सिकन ट्रेडिशन। अब मेरे हिसाब से जब हम सेशन कर चुके हैं, या मतलब जब भी ये पैसेज कर चुके हैं, तो वी शुड डू अ लिटिल बिट ऑफ गूगल ऑन फ्रिडा कालो एंड रीड एटलीस्ट 10-15 मिनट्स अबाउट। आपको उसके साथ जो एसोसिएटेड आइडियाज है ना, 4-5 वो मिल जाएंगे आपको। इससे पता चल जाएगा कि आप जो 1492 का जो पीरियड था, उसके पहले प्री कोलंबियन एरा थी, उसके बाद स्पेनिश आ गए, वहाँ पे ये आ गए, उन्होंने कैसे ट्रीट किया, वो कब चले गए। फिर आपको एक तरफ इसकी आर्ट के बारे में पता चलेगा, क्यूबिज्म और सररियलिज्म के बारे में पता चलेगा। फिर इसकी पर्सनल जो पेंटिंग्स है उसके बारे में पता, देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज यू विल गेट वंस यू स्पेंड 10-15 मिनट्स ऑन हर। तो अब जैसे आज हमने एक पैसेज करा, इसमें यहाँ पे लिवर एंड अल्कोहल, तो अब आप ये लेक्टिन जो लिखा है, आप ये लेक्टिन के ऊपर कर लो सर्च, थोड़ी सी गूगल कर लो, 10 मिनट पढ़ लो लिवर, और इसमें बोला है। फिर ये AP कॉलेज बोर्ड के लिखा है हिस्ट्री का, इसके ऊपर गूगल करके देखो कि यार ये क्या बातें हो रही थी वहाँ पे, क्या था, 2-3 आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, रीड दैट। पहला जो है नॉस्टैल्जिया वाला, उसके ऊपर गूगल कर लो। मतलब द पॉइंट इज कि आप भले 2 या करो या 3 RC करो, दैट इज, उससे ज्यादा करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर जो लोग ना 2-10 RC करेंगे दिन में, कुछ भी नहीं होने वाला उससे, मैं आपको आज लिख के दे सर बस अब प्रीवियस ईयर और एम कैट्स और जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं, बस इन तीनों को एनालाइज सेक्शनल टेस्ट आई नेवर रिकमेंड, ओके, सेक्शनल अच्छा, टेस्ट आई हैव sectional नेवर रिकमेंडेड फॉर VRC एंड आई विल नेवर रिकमेंड। ओके, दे आर, मतलब सर अगर बस उससे एम कैट्स और प्रीवियस ईयर बस। एम कैट प्रीवियस ईयर और मेरा जो मटेरियल टेलीग्राम का, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा VRC में, अगर आप सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो तो दैट इज गुड इनफ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट शुभम, चलो, so that's it, we'll wind up now. I hope this was useful. Thank you and सर एक RC तो रह गया, कौन सा वो? उसे छूना भी नहीं है। अरे उसको नहीं, उसको कर छोड़ दो यार, उसको कोई मूड नहीं है करने का, उसमें कुछ भी है ही नहीं ऐसा। मतलब उसमें आप ये आइडियलिज्म और ट्रांसेंडेंटल, देखो ये पैसेज जो था, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ तक तो ठीक है, बहुत लॉजिकल चला। इसके बाद में यहाँ पे कुछ इसने बातें करी जिसमें आइडियलिज्म और ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के बीच में डिफरेंसेस कुछ बताए, ठीक है। और उसके बाद में इसके ऊपर ये इसने तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला तो ठीक है। उसके बाद में मैं इस वाले इसके क्वेश्चन के 1-2 आंसर थे, इससे एग्री भी नहीं कर रहा हूँ इसमें। एक कौन सा था इसमें जिसमें उसने नॉर्मेटिव और ये वाली बात की थी, तो इसको अभी छोड़ दो यार, अभी एट दिस मोमेंट लेट्स लीव इट, ओके। ऐसे पैसेज अगर आएंगे तो मेरा तो रिकमेंडेशन है कि उसको छोड़ देना। ठीक है सर। हमें मैंने तो इसको एक पैसेज पढ़ा, पहला पैराग्राफ पढ़ा था, मुझे उसमें ही कंफ्यूजन हो गई थी, तो मैंने आगे फिर छुआ ही नहीं। बहुत अच्छा किया। देखो अगर हम तीनों कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट गो। आप चले जाओ उस पे और एक आध क्वेश्चन उसमें से निकालने की कोशिश जरूर करो। हाँ सर, अगर टाइम तो वर्बल में तो मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है, हाँ, तो DILR में और तो पॉइंट में तो बच ही जाता है, लेकिन वर्बल में तो चांस ही नहीं है कि वापस आ जाऊं मैं। हाँ, तो टाइम जो है अगर नहीं बच रहा तो इस ऐसे पैसेज को दूर से नमस्कार करना बेटर है। ठीक है, बहुत कुछ है दुनिया में यार, क्यों हम इस चीज में अपना दिमाग खराब करें। ठीक है, वी विल फोकस मोर ऑन द एक्चुअल कैट पैसेजेस। चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू एंड सी यू, बाय बाय। सर बस एक चीज और पूछनी थी सर, आपकी स्क्रीन टाइम कम कैसे करते हो? स्क्रीन टाइम कम कैसे कर रहे हो सर आपका? स्क्रीन मेरा 14 आवर्स के ऊपर जा रहा है स्क्रीन टाइम पर डे का। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कम करूं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। यस सर, सब कुछ मैं लैपटॉप से करता हूँ सर। और मतलब वो एक ही पोजीशन में बैठे बैठे सर, माय बैक इज जस्ट हॉरिबल राइट नाउ। नहीं तो आपको फिर बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए ना सर। ब्रेक लेने के बाद भी आई एम लाइक सेटिंग फॉर इट, नॉट इन ऑन अ स्ट्रेच कि 12 घंटे सीधे बैठ गया, पर वही जा रहा है सर, 12 घंटे एक सीट पे बैठना और उसके बाद में बड़ी छोटी छोटी लेटर्स पढ़ना सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
इसका क्या सोल्यूशन बताऊं? सर वही सर। सर कुछ आई सर एक आई एक्सरसाइजेस होती हैं हम्म आईज के लिए सर एक्सरसाइज होती है सर एक पेन से आई एक्सरसाइज होती है सर पहले मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी हाँ तो उससे ठीक हो गया था सर फिर ओके एंड तो सर एक आप और चीज है वो आंखों पे लाइक हम छट्टे मारते हैं ना, लाइक वी कैन डू दैट ऑफन, हर 1 घंटे 2 घंटे में जाके वी कैन जस्ट वॉश आवर आईज, दैट हेल्प्स बिकॉज वही है लेकिन स्क्रीन। उनको बैक की प्रॉब्लम हो रही है। बैक के लिए तो सर ये तरीका है, मैं आई ऑल्सो डू दैट व्हेनेवर इट फील्स बहुत स्टिफ हो जाती है, आई जस्ट स्टैंड अप एंड आई जस्ट मूव, जो हम बचपन में पीटी करते थे, थोड़ा बहुत मूव करने से इतना मूव हो जाएंगे कि हाँ नॉर्मल चल पाएंगे, वरना एकदम से ट्रांजिशन जब बेड से खड़े होते हैं ना तो प्रॉब्लम होता है। तो खड़े होके धीरे धीरे करके पीटी वाले एक्शंस, हाथ पैर फैला के, तो विद इन 1 मिनट अगर हम वही हाथ पैर हिलाएंगे तो इट विल बी बेटर। हर 1 घंटे में ये करने आपका टीसीएस का एक्सपीरियंस बता रहा है। नहीं नहीं सर, ये यस सर, देखो एर्गोनॉमिक। आप तो आपने तो आईटी में काम, देखो प्रियंका भी इन्होंने आईटी में काम किया हुआ है, तो आईटी में तो बैठ के इनफैक्ट एट अ स्ट्रेच कितने घंटे करते होगे आप? सर 9 आवर्स हैं, बीच में 1 घंटा लंच, ये सब हर 2-2 घंटे में तो ब्रेक लेते ही लेते हैं, 3 घंटे में राइट 15-15 मिनट का राइट। करते तो हैं। बेसिकली क्या है कि ये तो मतलब दिस इज गोइंग टू बी इनफैक्ट, चाहे आप कोई भी आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो यही होगा, मतलब यू विल बस रिक्वायर टू, सो यू हैव टू फिगर आउट, मतलब मेरे हिसाब से आपको ना थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज अपनी रेजिमेंट में डालनी पड़ेगी। कुछ कर रहे हो कि नहीं? अरे सर अभी तो आई एम स्लीपिंग 4 hours सर एट मैक्स। ओहो ओके सर ओके बीच में एक्सरसाइज तो हाँ नहीं, पर क्वेश्चन वो से बाहर एक्सरसाइज निकल एक्सरसाइज जरूरी है ना, एक्सरसाइज को कुछ इनकॉर्पोरेट कर लो ना, कि बीच में कान वान पे लगा के कुछ स्क्रीन पे मत देखो, लेकिन कुछ ऐसा कुछ कर लो ना कि एक थोड़ा वॉक आधा घंटा पौन घंटा अगर करने का मिल जाए ना, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। बिकॉज जैसे मैं आई मीन ऑफ कोर्स आई आल्सो सिट दीस डेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मतलब काम वाम तो मैं दिन भर सुबह से ही मैं भी करता हूँ, बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट वन ऑफ कोर्स 1 hour 15 minutes आई गो every day, okay, invariably। तो चलो of सर course you may not have the luxury, but हाँ सर फॉर बैक सूर्य नमस्कार विल वर्क। क्या चीज? सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, ओके ओके। वो जो नीचे से मतलब ले डाउन करके सीधा बैक को एकदम, हेड को एकदम ऊपर ले जाते हैं राइट 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 90 डिग्री पे, तो उससे क्या होता है बैक पूरी स्ट्रेच हो जाती है। भुजंगासन भी कहते हैं उसको। हाँ नहीं, वही। सूर्य नमस्कार तो पूरा वो है काफी स्ट्रेनवर्स भी होता है वो। बड़ा है, बहुत बड़ा है सर वो। हाँ तो सर प्रियंका लाइक आप कुछ इनमें से कर सकते हो, कुछ छोटा मोटा ट्राई? सर एक और हाँ चीज है, सर प्रियांक से इसकी वो 4 घंटे वाला चक्कर है, दिस ऑल्सो हैपन समटाइम्स, बट ये ना 3 दिन बाद जाके इतना फटीग डेवलप करता है। तो व्हाट वी कैन डू इज, अगर ये सुबह की क्लासेस लेता है सर की, तो 12 बजे 12:30 बिस्तर पकड़ लेना है और अपने आप 6-6:30 बजे उठ जाना है, ताकि सर की क्लास ले ली जाए, इतने में 6 घंटे भी पूरे हो जाएंगे और पूरा दिन रिफ्रेश रहेगा। ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। ओके, बट प्रियंका आप शायद लेट जागने के आदी हो, राइट? यस सर। तो सर और वैसे सर बात तो पावर है कि नैप्स सर काम आते हैं, हाँ सर पावर नैप्स बहुत काम आते हैं ऐसे। हाँ पावर सर नैप, एग्जैक्टली मैं पावर नैप्स में कर लेता हूँ सर, वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता राइट सर। वो मैं लंच 1 घंटे के बजाय 15 मिनट में ले लेता हूँ, तो फिर वो ओके मैनेज हो जाता है। ओके। यस सर। चलो करो यार कुछ ना कुछ, अब देखो थोड़ा लास्ट फाइनल स्ट्रेच है। वही सर एग्जैक्टली, इसीलिए हाँ खाना सोना छोड़ दिया है। नहीं, खाना वाना नहीं छोड़ना। ठीक है, चलो ऑलराइट गाइस, टेक केयर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। बाय।